now I invite a respected Vice Chancellor Sir and the coordinator of this faculty development program to deliver the welcome address. Sir, please. I would like to say that I've forced Harsita to call me. Am I right? There is a specific reason. I am interested to give the outline of the program also. On behalf of entire Vikrant University, I welcome Sri Arnesh Bhadoria ji in this campus. But before he will take the charge of the session, we are interested to let the audience know about the utility and why we have selected Arnesh ji as one of the speaker here. If we talk about the core manufacturing unit, there are n number of limitations. If we talk about the mechanical units, सभी ने लीफ स्प्रिंग देखी होगी जिसे अपन बस के अंदर पट्टा कहते हैं. It is not very easy to maintain the cleanness, to maintain the very systematic system here, because sometimes we talk about the heat treatment, temperature varies, too high temperature is around, if we talk about the temperature of the Bhilai steel plant, it is around 1600 degrees centigrade, where the steel we are interested to melt. At the same time, we talk about the heat treatment, temperature is around more than 700 degrees centigrade, because 720 is the recrystallization temperature of the steel. So at that temperature, how to maintain the human body also, it is very tough. If we place the air conditioning there, is it feasible? Not feasible. So ultimately, how to maintain the system, that can only be narrated by those persons they are really working at the soft floor. At the same time, we talk about the Jamna Auto. We are from Gwalior. I also, day before yesterday, when I read about the Jamna Auto, I was surprised to see that it is the world third number, that is a commercial spring manufacturing unit that is located in Gwalior. But the Gwalior people don't know about this. Really, it is a proud moment for the entire Gwalior also that such type of units are available in Gwalior. If we talk about the R&D segment of the Jamna Auto, it is really leading the entire world. And we are totally unfamiliar. I am the mechanical graduated in 1994, but at that time I was unfamiliar. Today also I was unfamiliar about this system, that Jamna Auto. At the same time, when I reviewed the Supreme, when I reviewed the SRF, really it is a proud moment for the entire Gwalior. The such type of unit is in Gwalior. So such type of, that is an interaction between the industry and academia, should be on the regular basis, and hope such interaction we will plan in future also. So without wasting any time, I request Harsita to tell about the Arnesh ji, his biography, and after that we will start the session. Once again, we are grateful to you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Mr. Arnesh Singh Bhadoria brings over 25 years of expertise in operations and strategic planning in the automotive sector. He currently serves as Assistant GM at Jamna Auto Industries Limited, where he is leading the digital transformation of manufacturing process through advanced AI integration and blockchain-based tracking system. His hands-on experience and leadership in incorporating these cutting-edge technologies make him a valuable contributor to the conversation on Industry 5.0. Sir, we are eager to hear your insights. May I request you to kindly take the session forward. Please, sir. I would like to thank, sincere thanks to the chairperson, all committee members who are going to making this program successful. And I think actually whatever I experience shared with you, it will be grateful or fruitful to all, each and everyone. अब सबसे पहला सवाल है, आज हमारा जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग थ्रू AI एंड ब्लॉकचेन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट निकल के आते हैं. सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा इंडस्ट्रीज, तीसरा AI और चौथा ब्लॉकचेन. लेकिन इन सबसे जो अलग है वो है डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग अगर आपके सही होंगे, अगर आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया,
तो आपकी जो इंडस्ट्री जहाँ पे आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप ग्रोथ कर पाएंगे। होता क्या है कि ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं एक ब्रीफ कर दूं कि जीवन में जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी बुक्स पढ़ते हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करते हैं या जो हम कल्चरल एजुकेशन को एडॉप्ट करते हैं, इन सबसे हटके जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम आते हैं तो बहुत अलग होती है। मतलब जो भी आप पढ़ते हैं उसका 20 से 30% आपके इस इंडस्ट्रीज में काम करता है, बाकी 70% आउट हो जाता है। जो 30% काम करता है वो क्या है? वो है हमारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और कल्चरल एजुकेशन, और जो मैंने मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो भी अर्थमेटिक पढ़ा वो काम आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने कोई टेक्नोलॉजी, कोई cos थीटा, tan थीटा या कुछ भी पढ़ा, वो कब काम आएगा? वो जब आएगा जब कोई R&D में आप जा रहे हैं या कोई पुल की वो मतलब साइट में काम करने जा रहा है या सिविल इंजीनियरिंग में जा रहा है, तो वो वहाँ पे काम आएगा। कहने का बेसिक मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम करने की सोच रहे हैं या कुछ भी करने का हम प्रयास करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें ये समझना चाहिए कि मेरा वैल्यू एडिशन क्या है। अगर आप जी मैं यहाँ पे आया और मेरे से आपने 1% भी सीखा तो मैं अपने आप को धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपने मुझसे 1% सीखा। तो व्हाट इज़ वैल्यू एडिशन? अब वैल्यू एडिशन हम आए और हमने कुछ सीखा नहीं या हमसे कुछ आपने कर नहीं पाया, तो फिर मेरा यहाँ आना गुड फॉर नथिंग है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहली शुरुआत अगर हम कहेंगे तो स्लाइड स्टार्ट करें। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं अपने बारे में कि जमुना ऑटो के अलावा मैं जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी को भी रन करता हूं, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं टू कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट फूड एंड कंप्लीट एजुकेशन टू ईच एंड एवरी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज CSR के अंतर्गत काम करती हैं। तो मुझे भी लगता है कि आदमी को इंडस्ट्रीज के अलावा अगर बाहर सोशल वर्क करता है तो उसमें उसको एक जो इंटरेस्ट होता है, जो हैप्पीनेस हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो मिलता है। तो कितने लोग अभी जो करंट में इस समय, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, ESG के बारे में जानते हैं? ये इस समय ESG जो है ना मैंडेटरी हो गया ईच एंड एवरीवेयर, वेदर इट इज इंडस्ट्रीज, वेदर इट इज कॉलेज, वेदर इट इज एक्चुअली जहाँ पर भी चाहोगे ESG बिना कोई काम नहीं होने वाला। और ESG के जैसे सर ने बताया, दो लोगों ने बताया कि हमको पता है, तो मुझे लगता है ESG एक बड़ी सिंपल चीज़ है, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। एनवायरनमेंट मतलब आपको पता ही है कि जिस एटमॉस्फेयर में हम रह गए उसको कैसे हेल्दी बनाया जाए, और सोशल मतलब एक दूसरे को शेयरिंग करके उनकी मदद कैसे की जाए, ये सोशल एक्टिविटीज़ है। और गवर्नेंस का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट, शायद मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, ये जो मैं करने जा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना, कैसे पब्लिक तक पहुँचाना, ये हमारा मोटो होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ESG। ESG के साइड इफ़ेक्ट और ESG कैसे एप्लीकेबल हुआ, इस पे हम बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम आई विल लेट यू नो द ESG। ESG में ओनली 3 स्कोप हैं, स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3। स्कोप 1 के मायने क्या है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपके कॉलेज के अंदर जो भी चीज़ें एमिशन, जो भी एक्चुअली इसमें ग्रीन हाउस गैस रहती है, जो भी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो आपका डायरेक्ट स्कोप 1 से आ रहा है। स्कोप 2 क्या होता है? स्कोप 2 है कि हम एम्प्लॉई हैं इस यूनिवर्सिटी के और मेरी गाड़ी यहाँ पे आ रही है, उससे जो जनरेट निकल रहा है वो, और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो चीज़ निकल रही है वो स्कोप 2 में आता है। और स्कोप 3 जिस पे आपका किसी का कंट्रोल नहीं है, वो है जहाँ से हम आउटसोर्स कर रहे हैं, जहाँ से हम रॉ मटेरियल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्कोप 3 में आता है। उसमें लेकिन हमारा कंट्रोल भले ही नहीं है, लेकिन उसमें हम पॉलिसीज एप्लीकेबल करा सकते हैं। कैसे? हम उनको ये कह सकते हैं, दीज आर द पॉलिसीज विच यू हैव टू मेंटेन बिफोर मेकिंग द प्रोडक्शन। वहाँ पर तो जैसे फॉर एग्जांपल जमुना के लिए RM का हम सोर्स है JSW, जनरल स्टील। वहाँ पे हमने भेजा कि मुझे एमिशन कम चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कम चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो स्कोप 3 मेरे लिए लागू है वो मैं टाटा के लिए लागू हो जाएगा। आप समझो, दिस इज चेन। ये जो मैं जिसके लिए स्कोप 3 हूँ वो हो सकता है टाटा, वो मेरे लिए स्कोप 3 है और मैं टाटा के लिए स्कोप 3 हूँ, क्योंकि टाटा मुझसे माल ले रहा। तो इस पे भी हमें काम करने की जर्नी ऑफ जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, इस पर मैं डिटेल इसलिए ज़्यादा बताने का प्रयत्न नहीं करूँगा क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जमुना 1954 में स्टार्ट हुआ और
हमने धीरे धीरे करके आज 2025 के अंदर जमुना की टोटल 10 इंडस्ट्रीज हो गई और वर्ल्ड की ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड थर्ड लार्जेस्ट कंपनी विद रेस्पेक्ट टू क्वालिटी। क्वालिटी के केस में ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और क्वांटिटी के केस में वी आर नंबर 2। तो ये जमुना की जर्नी, इसमें अपने को प्राउड होता है जब इस तरह की बात करते हैं जिस भी इंडस्ट्रीज में करें। तो बिफोर ज्वाइनिंग द जमुना आई वाज इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज केलोगनाथ सुप्रीम पेंटाप्लास्ट। वहाँ पे मैंने एज ए अपना कैरियर स्टार्ट किया था क्वालिटी एनालिस्ट से और सुप्रीम में मैंने तकरीबन 13 ईयर मैंने स्पेंड किया और करीबन 17 साल यहाँ। तो टोटल एक्सपीरियंस मेरा अभी जो 25 बाई मिस्टेक गलती से लिख गया 30 ईयर्स है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम जो जमुना ऑटो है ये लीप स्प्रिंग की लीडिंग कंपनी है और देखने में लीप जो लग रही है बहुत ईजी लग रही है। इट्स नॉट ए ईजी टास्क। इसके लिए 940 डिग्री के टेम्परेचर पर जब हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं उस समय हमें जो लड़का वहाँ खड़ा होता है उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यू कांट बिलीव। इसलिए हम एवरी 30 मिनट्स उसको रेस्ट करते देते हैं। हर आधा घंटे के बाद उसको वहाँ से हटाना पड़ता है क्योंकि बॉडी पे कहीं ना कहीं एक टेम्परेचर का साइड इफेक्ट पड़ता है। तो जो आज हम बात कर रहे हैं कि 5.0 की हम बात करेंगे कहीं ना कहीं, तो 5.0 में क्या हुआ, 5.0 से जो 4.0 आया इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन आया उसमें क्या रहा। 1.0 जब आया तो अपन ने देखा कि नदियों के किनारे इंडस्ट्री लगाना चालू कर दी बिकॉज ऑफ द स्टीम जनरेट करने के लिए। उसके बाद हम 2.0 पे क्यों पहुँचे, क्योंकि हमने वहीं से स्टीम से सीधे सीधे बिजली चालू कर ली और हम स्टीम पे 2.2 पे आ गए। 2.0 पे आ रहे और हमने जो इंडस्ट्रीज नदी के किनारे थी उसको हम खेतों की तरफ लेके आ गए ऊपर, मतलब एक प्लेन एरिया में आ गए। 3.0 आया, ऑटोमेशन आ गया। वहाँ पे चैलेंजेस आए पूंजीवादियों के, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो हमने क्या करा, लोगों से मदद लेके इंडस्ट्रीज को ऑटोमेशन में लेके आए। 4 जो आया वहाँ पे थोड़ी सी गलती हम लोग कर बैठे। क्या हुआ कि हमने सोचा बिना आदमी के काम हो जाएंगे, 100% ऑटोमेशन। और वहाँ हुआ क्या कि साइबर क्रैक हो गया। जो हमारी जो साइबर सिक्योरिटी थी वो क्रैक, ऑटोमेशन था उसको नोबडी वाज देयर टू मॉनिटर ऑल दैट। तो फिर 5.2 में हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि कोलैबोरेशन करते हैं, मशीन का और आदमी का दोनों कोलैबोरेशन करेंगे। तो एक आदमी बैठेगा, दूसरा वहाँ पे मॉनिटर करता रहेगा कि क्या चल रहा है। तो सीधी बात है कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसका जंटिल और अनलेस अगर उसका मॉनिटर नहीं करेंगे, उसको विजिलेंस नहीं करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस कभी हो ही नहीं सकती। तो मॉनिटर करने के लिए इसलिए जो 5.2 आया इस पर लोग फोकस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो आदमी के अंदर डर था, आदमी के अंदर इस बात का डर था कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। लेकिन नौकरी जाने वाली ऐसी कोई बात नहीं। जब हमने डेस्कटॉप स्टार्ट हुए थे 96 में और आज हम एंड्रॉयड फ़ोन पर बात कर रहे हैं, क्या किसी की नौकरी गई? किसी की नहीं गई। पहले सिर्फ इतना था कि हम लॉग बुक में लिखा करते थे, आज हम एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर लिखना चालू कर दिया। इतना अंतर आया। काम वही लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, किसी की कोई नौकरी ना जाएगी और ना कभी फ्यूचर में जाएगी। जो लोग इस डर से हैं कि टेक्नोलॉजी आने से नौकरी जाएगी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए, इस सुपर पावर को नोबडी कैन चैलेंज। ये सुपर पावर जो आदमी है ना, इसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। ये सारी डिटेलों को बार बार मैं जिस भी सेमिनार में जाता मैं ये बताने का इसलिए प्रयास करता हूँ कि अपने मन के अंदर जब भी हमें ये फियर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ये सब सोचना बंद कर दो। आप तो जीवन में इस बात को याद रखो कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और अच्छा ये होता नहीं होगा। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जीवन में जब भी आप कोई डिसीजन लें तो उसमें 10-10-10 का फार्मूला अवश्य रखें। हो सकता है कोई 5-5 का फार्मूला लगे, लेकिन मैं 10 की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी है और वो पिज़्ज़ा की दुकान पर खड़ा होता है और उसको लगता है कि मेरे को पिज़्ज़ा खाना। उसने पिज़्ज़ा खाया और 10 मिनट बाद कहता पेट पे हाथ फेर के बहुत अच्छा था, बहुत आनंद, मतलब अच्छा फील किया उसने। लेकिन 10 महीने के बाद वो क्या करता है, उसका शरीर फूलना चालू होता है और उसको लगता है कि पिज़्ज़े से मेरे को दिक्कत हुई है। और 10 साल बाद पता चलता है वो डॉक्टरों की नीड बन गया, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो गई उसको कि डॉक्टर आएगा तभी वो सही होगा। तो इस तरह के डिसीजन आपकी फोरकास्टिंग बता देते हैं कि अगर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया तो फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन उसी दौरान एक व्यक्ति है और वो SIP खुलता है 1000 रुपये की, और 10 मिनट बाद पता क्या सोचता है कि मेरी जेब से 1000 रुपये चला गया। लेकिन जब 1000 रुपये चला गया तो 10 महीने बाद पता क्या कहता है, 10,000 रुपये की सेविंग हो गई। लेकिन 10 साल बाद पता क्या कहता है, लाखों रुपए की वेल्थ बन गई। डिसीजन इस तरह के होने चाहिए जो आपकी फोरकास्ट को बता सकें, प्रेडिक्शन कर सकें। तो डिसीजन लेने में हमें बहुत कुछ, डिसीजन किससे लिए जाते हैं, शब्दों और विचारों से। अगर आपके शब्द ही नहीं है, आपके पास विचार नहीं, तो यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन।
आज हम यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, आप लोग बैठे, जो मेरे लिए प्राउडफुल मोमेंट है कि दैट हम आपके पास अपनी बात को रख पा रहे हैं। इसके अलावा जमुना का जो लीफ स्प्रिंग है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, इसको स्लाइड को, ये लीफ स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, देखने में बहुत इजी लग रही है कि इसमें तो कुछ नहीं, पट्टे जोड़ के रख दिए, ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले इसका आता है रॉ मटेरियल फ्लैट फॉर्म में। उस फ्लैट को हम लोग क्या करते हैं, SPVC करते हैं। इसका एस का मतलब शेयरिंग, उसकी जिस रिक्वायरमेंट में मुझे चाहिए उस रूम में इसको शेयरिंग करते हैं। उसके बाद पंचिंग, अगर कोई होल चाहिए तो पंचिंग करते हैं, सेंटर होल चाहिए, कटिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें करी जाती है। जो ये आपको ये दिख रहा, ये सब SPVC के साथ में है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस जो आता है वो आता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट कितने लोग जानते हैं, जो मैकेनिकल है वो होंगे तो सारे लोग जानते होंगे। हीट ट्रीटमेंट में क्या है, 4 प्रोसेस होती हैं। एक एनीलिंग होता है, दूसरा होता है नॉर्मलाइज, तीसरा होता है हार्डनिंग और चौथा होता है टेम्परिंग। तो जमुना के अंदर कौन सा एप्लीकेबल है, वो है हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। क्या है कि जब हम हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन मैं चलो इससे पहले ये भी बता दूं, एनीलिंग जो रहता है उसमें क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हम हीट उसके भट्टी के अंदर डालते हैं, उसके अंदर छोड़ देते हैं कूलिंग करने के लिए। तो ये लॉन्ग एक्चुअली प्रोसेस है, इसमें बड़ा टाइम लगता है उसको कूल होने में। लेकिन नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है कि अपन ने लिया और एयर कंडीशन में छोड़ दिया, तो उसमें हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। कोई भी चीज़ जब गर्म होकर के अगर हवा में छोड़ोगे तो वो सिकुड़ जाएगी, आप ऐसे मान के चलिए, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जानी है। जमुना के केस में क्या है कि जमुना को पटा जब हार्डनिंग में उसमें हम लगाते हैं 940 डिग्री पे, तो उसके बाद इमीडिएटली इसको वाई एयर में न लेते हुए कुंचिंग ऑयल में डाल देते हैं। कुंचिंग ऑयल में डाल देते हैं और कुंचिंग ऑयल के बाद जब बाहर निकालते हैं तो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो अब लोग कहते हैं कि यार तुमने हार्ड पट्टे को पहले उसको हार्ड इसको टेम्पर किया और उसके बाद ऐसा किया। वो इसलिए करना पड़ता है कि जब इसको हम टेम्पर पे ले जाएंगे, टेम्परिंग मशीन पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे ये सॉफ्टनेस हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली जो आई आप देख रहे हैं, इसकी जिस भी फॉर्मेशन में चाहिए वो टेम्परिंग के बाद ही होगा। टेम्परिंग से पहले ये सिर्फ अपनी क्या प्रॉपर्टी दिखाएगा कि जिस ओरिजिनल फॉर्म में हमने रॉ मटेरियल खरीदा उसमें सिर्फ आपने जो SPVC किया उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करता रहेगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जैसी टेम्परिंग हो जाएगा उसके बाद जो चाहिए आप वो कर लो। आई चाहिए आई बना दो, आपको चाहिए नहीं मैं आई नहीं बनाना, मुझे सिर्फ हाफ पैनल बनाना तो हाफ स्पान बना सकते हो। ये है टोटल प्रोसेस। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट के बाद इसमें आता है, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट के बाद हमारी जो जिसको बोलते हैं असेंबली लाइन, या सुप्रीम में जो लोग हैं तो सुप्रीम को भी पता कि उसमें भी असेंबली लाइन है। बस ये कि वहाँ पे अपना पाउडर फॉर्म में निकाल के डाल के रोलिंग से आते हैं। और यहाँ पे असेंबली लाइन क्या होगी कि शॉर्ट पिनिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं, शॉर्ट पिनिंग, शॉर्ट्स के बारे में। तो शॉर्ट्स क्या करता है, शॉर्ट हमारी लाइफ बढ़ाता है और शाइनिंग करता है। जो भी पटा अगर कोई अपना शरीर है, नहा धोने के बाद पाउडर लगा लो तो अच्छे लगने लगते हैं, सेम प्रोसेस शॉर्ट पिनिंग की है। हम इसलिए इतने में हिंदी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग अंग्रेजी में बोल के चले जाते हैं। और सब लोग, एक मेजोटा सेन आता है हमारे पास जापान से, और वो पूछता है कि आया, तो हम लोग ऐसे करते हैं क्योंकि हम ये नहीं कह पाते नहीं आया, वो कहते आ गया, सब समझ में आ गया। जब वो पूछता सवाल तो बोलते समझ में नहीं आया। तो हमने क्या है, हर उस बिंदु पे चर्चा करनी है। अगर आपको मेरे सवालों में कहीं पर भी सवाल पूछना, इमीडिएटली मुझे रोकना, सवाल पूछना, ताकि आपने मेरे द्वारा 1% भी अगर कुछ सीख लिया तो मुझे लगेगा कि जो हमारा इंडस्ट्री और जो एजुकेशन के बीच में जो गैप है उसमें कुछ फिलअप, कुछ भर जाए। इसके अलावा जब हम इसको असेंबली लाइन में जाते हैं तो इसमें कई प्रोसेस हैं। पहला, सारे पटों को एक रो में लेके आना और उसके बाद उनको सेंटर बोल्ट, इसके चाइल्ड पार्ट्स रहते हैं। चाइल्ड पार्ट्सों का मतलब होता है कि एक असेंबली में कितने तरह के चाइल्ड पार्ट लगते हैं। एक तो असेंबली को ज्वाइंट करने के लिए एक सेंटर बोल्ट लगेगा। इसके बाद इनको पकड़ने के लिए कहीं गिर ना पड़े तो उसके लिए हम क्लैंप यूज करते हैं। उसके बाद अब टाटा की एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसमें जो नॉइज होता था, टाटा की गाड़ियों में पहले नॉइज बहुत होता था, अभी उन्होंने बंद करवा दिया। उसके लिए उन्होंने पैड यूज किए, प्लास्टिक पैड जिसको पैड बोलते हैं, उन्होंने उसको यूज करवाना चालू कर दिया। तो उससे जो नॉइजिंग आती थी गाड़ी के अंदर वो बंद हो गई। तो ये टाटा का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उन्होंने खुद डेवलप करा इसको। और जो हम असेंबली की जो बात कर रहे हैं, ये पूरे एशिया के अंदर जमुना के अलावा इसकी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पता। इसलिए जमुना का जो शेयर ऑफ बिजनेस विद द टाटा मोटर, विद आइसर मोटर, विद अशोक लेलैंड 75 और 80% के बीच में है।
हमारे जो 10 कंपटीटर हैं उनका बिजनेस है 2%, 5%, 7%, बाकी 80% जमुना लीड करती है। जमुना का शेयर ऑफ बिजनेस विद टाटा 80% है। 80 के हम 100 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास हम बना नहीं पाते, इसलिए हम 80% भी सेटिस्फाई रह रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल इनकन्सिस्टेंसीज जो रहती हैं, क्या होता है कि इसको एक सरल भाषा में ये कहें कि जब भी हम कोई खाना या कुछ भी बनाएं घर पे, उसमें ज़रा भी कमी निकल जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, यार सब्ज़ी में स्वाद नहीं आया। बस यही समझ लेना क्वालिटी है। क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं, उन्होंने कहा कि मुझे इस रेंज में क्वालिटी चाहिए। उसके रेंज में अगर आपने क्वालिटी प्रोड्यूस कर दी तो आपकी एक पॉलिसी लागू होती है जिसको बोलते हैं CQD, कॉस्ट, क्वालिटी एंड डिलीवरी। अगर इस पे आप काम कर गए तो आपको ये मान के चलना कि आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, लोग आपके पास खरीदने आएंगे। CQD पे अगर आपने काम किया तो कॉस्ट, क्वालिटी एंड डिलीवरी पे। इसके अलावा सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी इशूज। सप्लाई चेन के केस में क्या रहता है, आज की डेट में लोग सप्लाई चेन को किस एंगल से सोचता है मुझे नहीं पता, लेकिन सप्लाई चेन की जो जिम्मेदारी है वो P2P पे है। प्रोक्योरमेंट टू पे टू द सप्लायर, जब तक पैसा नहीं पहुंच जाता है ड्यूरिंग दैट पीरियड जो भी प्रोसेस कंपनी के अंदर हो रहा है या सप्लायर से जो मटेरियल लेके आ रहे हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ओनली सप्लाई चेन मैनेजर जो मैनेजमेंट रहता है उसी की रहती है। उसको पैसा कैसे दिलवाना, क्या करना, सारा उसी का है। तो इस सप्लाई चेन के दौरान लोग पढ़ने को तो ChatGPT में जाओगे इसकी डेफिनेशन मिलाएगी, लेकिन मेरी नज़र में सप्लाई चेन इट्स ए चेन ऑफ सर्विसेज विद इंटरनल डिपार्टमेंट एंड आउटसोर्स, बस नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, केवल आपके जो इंटरनल डिपार्टमेंट इनको सर्विस देना और आउटसोर्स जहाँ से आपको मटेरियल करना उससे लाइजनिंग करना, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेजर काम है। लेकिन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा मेजर्स आ जाते हैं, जो मेजर फैक्टर रहते हैं। आंधी तूफान आ गया, फिर आप सप्लाई चेन को कैसे प्रभावशाली बनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। इसके लिए सबसे बड़ी काम है आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग में ज़रा भी मतलब कमी आ गई तो आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मतलब पार्ट हो ही नहीं सकते। तो प्लानिंग को हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे प्लानिंग की स्ट्रेटजी हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसकी एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या, नंबर 1। दूसरा कस्टमर्स के ऑर्डर क्या है, नंबर 2। तीसरा हमारा जो लीड टाइम है बुक क्या है, उसके हिसाब से हमें ऑर्डरिंग करनी पड़ती है प्लानिंग की। अगर हमारी ये सब चीज़ें हमें पता होंगी, इसमें एक चीज़ और आती है CT, TT एंड LT। कितने लोग इसके एब्रीविएशन है, CT मतलब साइकिल टाइम, TT मतलब टेक टाइम और LT मतलब लीड टाइम। इन तीनों का इस HCM में बहुत बड़ा रोल है। साइकिल टाइम क्या बताता है आपको कि कितने सेकंड में या कितने मिनट में या कितने घंटे में आप क्या बनाने जा रहे हैं, यही है ना साइकिल टाइम। अब जमुना के केस में क्या है, जमुना का साइकिल टाइम 13 सेकंड से लेकर 30 सेकंड रहता है। मतलब ये इट्स वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ये अगर हम पैराबोलिक बनाएंगे तो हमारा साइकिल टाइम थोड़ा हायर होगा, क्योंकि पैराबोलिक के केस में हम टेम्पर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। पैराबोलिक की जो एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ पर आप अगर जो जिस हालत में आया वो उसी हालत में रहेगा, उसके साथ आप कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। लेकिन बिफोर इंट्रोड्यूस पैराबोलिक वी आर वर्किंग विद कन्वेंशनल में क्या था, लोहार जैसे काम करता है, थोड़ा ठोक ठाक के करके उसको कमानी बना दी। अब ऐसा नहीं है, अब तो एयर जो पैराबोलिक जो टेक्नोलॉजी है अक्रॉस द वर्ल्ड सब जगह पैराबोलिक ही चालू हो गया। और इसमें आप टेम्पर करा तो ये आपका बटा टूट गया, इसलिए इसमें टेम्पर नहीं कर सकते, इसमें केवल मशीनिंग होती है। अगर आपने हथौड़ा लगा दिया इसके अंदर तो आपका काम समझ लेना ये खत्म ही है। इसलिए इसको केवल मशीनिंग में अगर गलत बन गया तो हटाएगा, रिजेक्ट होगा, लेकिन सीधा नहीं कर सकते आप इसको हथौड़ा मार के। ये है इस पैराबोलिक की क्वालिटी। इसीलिए इसकी कॉस्ट जो कन्वेंशनल कॉस्ट है उससे 30% ऊपर है। आज की डेट में शायद लाख रुपए किलो के ऊपर जा रहा है, ये 1 लाख रुपए टन के हिसाब से जा रहा है। और कन्वेंशनल जो था वो 50-60 हज़ार रुपये था। तो इतना बड़ा अंतर है इसके अंदर पैराबोलिक के अंदर। अब जो TT और CT और LT की हम बात करते हैं तो सबसे कॉमन सेंस है कि CT मतलब होता है कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है कि इतने सेकंड में एक पटा निकलेगा तो 8 घंटे में कितना निकलेगा, ये तो हो गया आपका CT। TT का मतलब होता है टेक टाइम। टेक टाइम से मतलब होता है कि बिल्ड टाइम क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल टाटा ने कहा कि मुझे 1000 कमानी चाहिए,
अब आपको 1000 कमाने के लिए टीटी कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास पहले ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कितने घंटे चल रही है। बोले तीनों शिफ्ट चल रही, मतलब हो गया 24 घंटे चल रही है। 24 घंटे में 3 घंटे आपने किसके निकाल दिए? आपने निकाल दिए लंच ब्रेक, टीवी, ये सब के निकाल दिए। तो आपकी कंपनी कितनी चली? 24 में से 3 गए, 21 घंटे चल गई। अब 21 घंटे में डिवाइडेड बाई जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 21 का भाग दे दो, जो आपका आता है दैट इज कॉल्ड टेक टाइम। तो अगर टेक टाइम सीटी से ज़्यादा है फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर आप आराम से कूद रहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता आपकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर दोगे। लेकिन अगर टेक टाइम सीटी टाइम से कम हो गया फिर यह तो आपके हाथ से ऑर्डर चला जाएगा या आपको लाइन बैलेंसिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और लाइन बैलेंसिंग का मतलब हो गया कि आप, इट्स नॉट ए स्मॉल जॉब और वन डे जॉब। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस बनाना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद कस्टमर की जिस रिक्वायरमेंट जो आज आई है उसको पूरा करने के लिए हो सकता है आपको 6 महीने 1 साल लग जाए। तो टीटी में सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है? टीटी में सबसे बेस्ट होती है साइकिल टाइम इक्वल टू टीटी अवेलेबल टाइम। अगर ये दोनों बराबर मिल जाएं, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इन्वेंट्री जीरो रहेगी और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। एलटी लीड टाइम, कितने लोग बता सकते हैं लीड टाइम क्या होता है? एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि पीओ बना दिया, लीड टाइम स्टार्ट हो गया, माल आ गया, लीड टाइम। कितने लोग हकीकत में ये बता सकते हैं लीड टाइम क्या होता है? डेफिनेशन मत बताना, डेफिनेशन तो किताबों में बदल की है। चलो मैं बताता हूँ लीड टाइम क्या होता है। कि जब कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज के अंदर पीओ रेज किया, आज 22 तारीख के 22 जुलाई को मैंने एक पीओ रेज किया और सप्लायर ने उसको आज ही एक्सेप्ट कर लिया और 30 तारीख को उसने माल जमुना ऑटो के अंदर फैक्ट्री में भेज दिया। तो इस दौरान आपके टोटल दिन हो गए तकरीबन 8 दिन हो गए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 दिन हो गए। लेकिन लीड टाइम इसमें क्या हुआ? लीड टाइम 8 दिन हुआ, क्योंकि जिस डेट में पीओ रेज होता है हम लोग गलती ये कर देते हैं कि उसी से लीड टाइम चालू कर देते हैं, लेकिन लीड टाइम वो नहीं होता। लीड टाइम होता है मेकिंग द पीओ एंड रिसीविंग द पीओ। तो जब एक्नोलॉज हो जाए आपका पीओ उसी दिन से लीड टाइम चालू हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे से लीड टाइम चालू। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोसेस टाइम क्या होगा, तो डिलीवरी टाइम क्या होगा, फिर माल आएगा तो क्या होगा। अगर इस कंफ्यूजन में रहे तो कभी लीड टाइम निकाल ही नहीं पाओगे। लीड टाइम एक सिंपल परिभाषा एक ही है कि आपने जब पीओ रिलीज किया, कस्टमर सप्लायर ने जब उसको एक्सेप्ट किया और उसने जब भी माल दिया, इस दौरान जितने भी टाइम लगे दैट इज कॉल्ड लीड टाइम ओनली। इसके अलावा कोई लीड टाइम नहीं। अगर कोई आपसे कहता ना कि प्रोसेस टाइम, ठीक है प्रोसेस टाइम है, क्यों? क्योंकि उसने जो 20-30 दिन लिए, अगर रेडी होता तो उसी दिन दे देता माल आपको, लेकिन उसने 30 को दिया, मतलब उसने माल बनाने में टाइम लिया। इसके अलावा ट्रांजिट टाइम भी इसमें आया। तो इसमें आपको प्रोसेस टाइम प्लस ट्रांजिट टाइम ये जोड़ करके लीड टाइम डेवलप होता है। लेकिन लीड टाइम काउंट वहीं तो होगा जब आपका जो पीओ है वो एक्नोलेज बाय द सप्लायर, वहाँ से लीड टाइम स्टार्ट होता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड आज की डेट में इनमें तो इतना ज़्यादा हो ही नहीं रहा, क्योंकि सारे रोबोट और सेंसर लगे चुके हैं। तो एक इसमें एक डिजिटल ट्विन होता है जो वर्क करती है। डिजिटल ट्विन के मायने क्या है? डिजिटल ट्विन, जैसे आप सब लोग, हम लोग बैठे हुए हैं, अपन एक सिंपल भाषा में कहीं एक बगल में पुतला खड़ा कर दिया अपन ने, और उसको आँखों की अपने आदमी की तरह सारी चीज़ उसके अंदर लगा दी, और उसके बाद उसमें एक इंजेक्ट जैसे लगाया तो उसने क्या रिएक्शन किया, इसको अपने ये बोल सकते हैं कि जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं, एक आभासी चीज़ खड़ी कर दी और उसमें कुछ भी इंजेक्ट किया, उसने जो रिएक्ट किया उससे हमें पता चल जाता कि क्या करना है, आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किताबों में बहुत कुछ लिखा रहता है, वो तो लिखने के लिए लिखा है, बाकी मेन जो रोल है वो ये है। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पहले क्वालिटी में क्या थे, लोग भरते रहते थे अपन लोग, जो भी भरा क्वालिटी में लोगों सुपरफिशियल मिस्टेक आ गई है, ये आ गया वो। अभी ऐसा नहीं है, अभी सारा डिजिटलाइज है। आपने ये लीफ ली, उसके नीचे रखी, उसने क्लियर बता दिया कि ये पैरामीटर्स, ये इसमें हार्डनेस ज़्यादा, हार्डनेस कम है, सारा कुछ ऑटो सिस्टम है। तो जो हम प्रॉब्लम, पहले टाइम टेकन जॉब था क्वालिटी, अब टाइम टेकन नहीं रह गया, अब सिर्फ रह गया कि आप जाओ, लगाओ और क्वालिटी देख लो क्या आ रही है।
तो ये सब हमें, ऐसा नहीं कि एआई और जो चैट जीपीटी और डीप सीक जो आए इनके ऑटोमेशन के फ़ायदे नहीं, इनके बहुत फ़ायदे हैं, बट इनके दुरुपयोग भी हो रहे हैं जो आपको सबको सामने दिखते भी हैं। इसके अलावा ऑप्टिमाइज डिज़ाइन पैरामीटर जो हमारा पार्ट नहीं है, एक्चुअली डिज़ाइन ये आर&डी का काम रहता है। आर&डी को हमारी पुणे में जो आर&डी है वो दुनिया की सबसे बड़ी आर&डी कहलाती है लीप स्प्रिंग के अंदर, जो कि कंपनी दुनिया की जो आर&डी में जो मतलब रसिया की नंबर 1 कंपनी है, उससे भी बड़ा अपना आर&डी है। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सुनील लरोहिया जी हैं, जो कि आज की डेट में उनकी डिमांड पूरी एक मतलब ग्लोबलाइज उनकी डिमांड रहती है, इतना बड़ा मतलब उनका सेटअप है वहाँ पे। इसके अलावा डिमांड फोरकास्टिंग प्रोडक्शन प्लानिंग ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये डिपेंड करती है आपकी CT, TT एंड LT और कंपनी की अवेलेबिलिटी। अगर इसमें आपको पता है जैसे टाटा है, टाटा से कुछ करना नहीं है, टाटा को तो पता है जमुना लीडिंग कंपनी, उसको ऑर्डर देना ही है। लेकिन इन सब के बीच में एक इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे लोग मेरे पास जो MBA के लड़के आते हैं वो कहते हैं मैंने मार्केटिंग से और फाइनेंस से MBA किए हुआ है। तो मैं पूछता हूँ उनसे कि मार्केटिंग क्या चीज़ है, तो वो डेफिनेशन सुनाते हैं कि मार्केटिंग ये है। फिर मैं पूछता हूँ सेल्स क्या है, तो बोले सेल्स ये है, माल बेचना सेल है, मार्केटिंग ये। लेकिन हकीकत में मार्केटिंग का काम क्या है? मार्केटिंग का एक सिंपल काम है कि जमुना ऑटो जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो कहाँ बेचेगा, वो जगह तलाशना है बस। इसके अलावा मार्केटिंग का कोई काम नहीं। ना तो मार्केटिंग की जिम्मेदारी माल बेचना, ना मार्केटिंग का काम है ऑर्डर लेके आना। मार्केटिंग का काम है केवल कहाँ पर जमुना का प्रोडक्ट बेच सकता है उस एरिया को ढूंढना, उसको सर्च करना। इसके अलावा सेल्समैन का काम क्या होता है, उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अनटिल और अनलेस जब तक मटेरियल नहीं बेचेगा उसको तनख्वाह का नहीं मिले। ये है बहुत बड़ा बिग डिफरेंस जो कि MBA के बच्चे आकर के ये बताते हैं कि मेरी डेफिनेशन है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी बता देता हूँ, हो सकता है आपको वेरी मच क्लियर हो जाए कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। एक राजा के 3 पुत्र थे और तीनों काफ़ी बुद्धिमान थे। मान लो जब उनको राजा का जब अंतिम दौर चल रहा था तो उन्होंने अपने तीनों बेटों से कहा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो बोले लगता तो मुझे सभी इंटेलिजेंट है, तो मैं इसमें से किसको बनाऊँ। फिर भी बोले मेरे को टेस्ट लेना पड़ेगा। बोले क्या? बोले अपना जो कंगों का कारोबार है ना कॉम का, बोले इसमें से जो सबसे ज़्यादा बेच के आ जाएगा मैं उसी को अपना उत्तराधिकारी बना लूँगा। और उन्होंने साथ में ये कह दिया कि यहाँ पे एक बोध बिच्छू रहते हैं गुरुजी, उनके पास भी चले जाना। ये उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया उसमें। अब बड़ा लड़का एक थैला में कॉम भर के और वहाँ बोध बिच्छू के पास पहुँचा तो देखता क्या कि किसी के बाल ही नहीं वहाँ पे। अब कंगी बेचेगा कैसे? तो उसने देखा कि जो अनुयायी आ रहे थे, जो फॉलोअर्स आ रहे थे, तो फॉलोअर्स जब आ रहे थे उनमें से किसी से उसने पूछ लिया कि बोले भैया मेरे पास कॉम का बिजनेस है कि आप इसको लोगे। सब ने मना कर दिया, लेकिन एट द एंड एक कॉम बेच के पिताजी के पास पहुंच गया। राजा ने बड़ा खुश हुआ, चलो मेरे बच्चे ने एक कॉम बेच दिया। दूसरा वाला जब पहुंचा, बीच वाला वहाँ पे, तो उसने भी सेम नज़ारिया देखा, लेकिन उसको लगा कि कुछ अपनी स्ट्रेटजी अपनाई जाए। फिर से बात कर रहा हूँ स्ट्रेटजी और प्लानिंग। तो उसने जब स्ट्रेटजी अपनाई तो उसने कहा कि आपके बाल उड़ रहे हैं। जो अनुयायी आ रहे थे बोले बाल थोड़े उड़ रहे हैं, तो इसको इस कॉम के द्वारा सही किया जा सकता है। तो उसने कहा ठीक है, शाम तक 100 कंगे बेच के चला गया। पिताजी के पास जब पहुंचा, पिताजी बड़े खुश हुए। छोटा बेटा था, वो बिल्कुल साइलेंट था। इसलिए कहते हैं जीवन में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, फोकस एंड एटीट्यूड, इस पर भी डिस्कस कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब वो पेशेंस पे बैठा था, जब वो पहुंचा तो सबसे पहले उसने देखा कि वहाँ पे सब वही नज़ारा, बाल नहीं किसी के लिए। वहाँ पे गुरुजी के सामने बैठ के और आंखें बंद कर ली उसने, पेशेंस रखा। तो गुरुदेव की जब नींद खुली, वहाँ पे गुरुदेव अपने उसमें थे, देखा कि बच्चा बैठा हुआ है, तो उन्होंने पूछा कैसे आए? बोले आया नहीं। बोले मुझे टीवी खींच लाई। बोले कहते? बोले मैं आपको टीवी पे देखता था, आपके जो दिव्य वचन, दिव्य वाणी थी, उसमें इतना अट्रैक्शन था, तो मुझे ये लगा कि मैं टीवी में नहीं, अब तो मैं आपके सामने बैठ के सुनूंगा। तो उन्होंने गुरुजी बड़े खुश हुए, बोले ठीक है। बोले और कुछ चाहते हो? बोले कुछ नहीं चाहता। बोले फिर क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूँ कि आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द, आपके द्वारा बोली गई हर एक बात, इसको एक मैं संक्षेप में एक लाइन में लिखना चाहता हूँ, ताकि लोग हर सुबह उठें और इसको पढ़ें और अपने मन में बैठा लें। तो गुरुजी थोड़े आश्चर्य हुए, बोले ये कैसे संभव है? बोले संभव है। बोले क्या? बोले मेरे पास एक कंगा है। बोले वो क्या काम करेगा? बोले उसके ऊपर जो कांटे लगे ना ऊपर, इन पे मैं आपका एक मंत्र लिखवा दूंगा। गुरुजी से बोले
बोले जो भी आदमी सुबह उठेगा उनको आप ये बता देना कि इसको पढ़ेंगे और आपको याद करेंगे। गुरुजी ने तुरंत कहा 10 लाख कंगे मेरे पास रखवा दो, कल 10 लाख कंगे मेरे पास रखवाओ। और वो लड़का वहाँ से ऑर्डर लेके चला गया घर पे। पिताजी के पास आया, बोले क्या हुआ? बोले 10 लाख का ऑर्डर मिल गया। बोले वो कैसे मिल गया? पूरे वृतांत सुनाया। यहाँ पे आपने क्या सीखा? उसने क्या कंगा बेचा? बिल्कुल नहीं, उसने गुरु जी के शब्दों को कंगे में लगा के बेच दिए। उसने क्या बेचा? यहाँ पे कंगा थोड़ी बेचा, उसने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने गुरु जी के शब्द को बेच दिया, कंगे में लेकिन लगा के बेच दिया। दिस इज द स्ट्रेटजिक। इस तरह की अगर प्लानिंग अपन रखते हैं, कहने में अपने को लगता है, मैं कह रहा हूँ ये जीवन में होती हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है ना ये जीवन में नहीं होती हैं, जीवन में वो हर चीज़ होती है जो आप सोचते हो, हर वो चीज़ होती है जो आप सोचते हो, मान के चलना। बस वो चाहता है कि आपको वही वाली कहावत आती है कि परफॉर्मर बनना है या फॉलोअर बनना है या लाइकर्स बनना है। किसी की बात सुन ली, किसी की फेसबुक खोल ली, उसमें लाइक मार दिया, उसमें अच्छे लग गए तो उसको फॉलो कर दिया, तो आपने क्या करा? क्या खोया यहाँ पे? आपने अपनी क्रिएटिविटी खो दी। क्या खो दिया आपने? आपने अपना जमीर खो दिया। आपने तो उसको फॉलो करते चले गए ना। इसलिए जीवन में मेरी भी बातें आप सुन लेना, इनको लागू करना जरूर, लेकिन इनको लागू अपने दिमाग से करना। किसी की बात को सुनना अच्छी बात है, जैसे कभी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाई और कर्महीन नर पावत नहीं। तो जिस व्यक्ति के जो कर्महीन होगा वो सोचे कि मुझे सब कुछ मिल जाए, नहीं मिलने वाला उसको। और सकल पदार्थ है जगमाई, इस पूरी दुनिया में जिधर भी आप निगाह डालो वहीं जेम्स मिलेंगे आपको, जेम्स। लेकिन मिलेंगे किनको? जो कर्म करेंगे, जो क्रिएटिव माइंड चलाएंगे, उनको थोड़ी मिलेंगे जो फॉलो करेंगे। फॉलोअर्स की लाइन में थोड़ी आना, परफॉर्मर बनना हमें या लाइकर्स बनना है। तो परफॉर्मेंस आप कब कर पाओगे? जब आपका क्रिएटिव माइंड काम करेगा, जब आपका क्रिएटिव माइंड काम करेगा। वरना आप फॉलो करो, लोगों की इंस्टाल देखो, रील देखो और उससे खुश रहो कि मैंने आज रील देखी, 1 लाख रील देखी, खुश हो गई। ये नहीं करना। हमें अपना वजूद बनाना है, और अपना वजूद आप जब भी बना सकते हैं जब आपके अंदर गट्स होंगे, जब आपके अंदर वैल्यू एडिशन ऐड करने की क्वालिटी होगी, जब आप सोचने की क्षमता रखते होंगे, तो ही बना पाएंगे। मेरी अपनी लाइफ की मैं बता देता हूँ कि मैंने जमुना ऑटो में जब मैंने असिस्टेंट मैनेजर से ज्वाइन किया, आज मैं AGA में हूँ, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की है। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड जब मुझे लगा कि मैं लोगों की सेवा करना चाहूँ, तो मैंने 21 में जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी को इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया, जिसके माध्यम से मैंने बताया कि कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट फूड और कंप्लीट एजुकेशन हर व्यक्ति, हर कमज़ोर वर्ग को देना। तो लोगों ने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई, बोले तुम कैसे दोगे? तो मैंने कहा कि अगर अपनी दृढ़ क्षमता है ना, अगर दृढ़ शक्ति है तो उससे सब कुछ संभव है। तो हमने तकरीबन 500 से 1000 लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया और हम दे चुके। अब तुम कहोगे 500 से 1000 लोगों को दिया तो मुझे भी दिलवा दो, तो आपको भी मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा किसको? जो व्यक्ति MBA मेरे पास आता, मैं उससे हाथ जोड़ता हूँ कि मैं तुम्हें रोजगार नहीं दिलवा पाऊंगा। क्यों? अगर आप इतनी क्वालिफाइड होते, एक डेफिनेशन यहाँ क्वालिफाइड में भी आ गई कि एक हाईली क्वालिफाइड होता है, एक वेल क्वालिफाइड होता है। तो आप हाईली क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, ये आप डिसाइड करें, उससे मैं हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन जो 10th पास बच्चा है, जो 12th पास है, जो ITI है, उसकी गारंटी लेता हूँ कि वो लगेगी नौकरी। क्योंकि उसमें मोदी जी ने अभी जो CTC स्कीम चालू की है, कॉन्ट्रैक्ट टू कंपनी, इसमें सबको मिल रहा जॉब, कोई ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिल रहा। अब वो ठीक है, फ्री की स्कीम में नहीं करना चाह रहा तो अलग बात है। बाकी इस दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है सब जगह, अभी मैं नासिक गया था, वहाँ लड़कों की मतलब डिमांड बहुत है, लेकिन है ही नहीं। क्यों? हम करना नहीं चाह रहे। गडकरी साहब ने कुछ फ्री की राशन बांट दिया होगा, किसी ने, ये चल रहा। इसलिए अगर जो व्यक्ति ये कहता है कि जॉब की कमी है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ जॉब की कमी नहीं है। जॉब की कमी कहीं नहीं है। अगर कोई मेरे से आगे मिलेगा तो जॉब दिलवा दूंगा। जबकि आप सब लोग इंडस्ट्री में थे। अभी मैं सुप्रीम में बात कर रहा हूँ, सुप्रीम में 20,000 रुपये 12 घंटे की दे रहा है अभी CTC में। जमुना ऑटो हमारी 15,000 रुपये दे रही है 8 घंटे की। तो अब लेकिन मिलेगा किसको? जो 10th पास हैं, ITI हैं, इनको। जो MBA है, मैं उनके लिए हाथ जोड़ता हूँ। क्यों? वो क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो उनका जॉब खुद ही ले पाएंगे। ठीक है? तो हाईली क्वालिफाइड और वेली क्वालिफाइड में लोग अंतर जानते हैं कि नहीं? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? क्या होगा बताइए? हाईली क्वालिफाइड जो रहते हैं वो क्या है कि
काम को मतलब वो समझते हैं वेल जो रहते हैं क्वालिफाइड जो रहेंगे हाईली रहेंगे तो काम के लिए प्रॉपर वो भी करते हैं मतलब कर नहीं सकते या कुछ भी उनका कुछ रीजंस होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड है पर जो 10-12 के रहते हैं वो काम करने में कभी भी वो नहीं ये एक्चुअली सब्जेक्ट अलग हो गया। हाईली क्वालिफाइड और वेल क्वालिफाइड ये दो चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल हैं। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है जिसको एक पता है, जैसे मान लो इसको मैं आप इसको रामायण से जोड़ दूं तो आपको बड़ा साधारण में आ जाएगा। रावण जो था ना, रावण, उसको ज्ञान का अहंकार था, मतलब ही वॉज वेरी हाईली क्वालिफाइड। और जो राम थे उनको अहंकार का ज्ञान था, वो वेल क्वालिफाइड थे। तो देख लो कौन निपट गया कौन बच गया। तो आप समझो, जिसको जो हाईली क्वालिफाइड होगा वो डिग्री बहुत ले सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन जो वेल क्वालिफाइड होगा वो डिग्री कम होगी, नॉलेज होगी इसके पास। तो हमें हाईली क्वालिफाइड की बजाय वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, हाईली नहीं। हाईली में तो उनने कहा मैं PhD फलाना ये सब कुछ है, बोले लेकिन तुमने करा क्या जीवन में? बोले डिग्रियां ली मैंने और कुछ नहीं करा। ये नहीं करना है। अब हमारे यहाँ पे जो लीफ स्प्रिंग हमने आपको बताया कि लीफ स्प्रिंग आप लगती कहाँ है पता है? गाड़ियों के जितने भी गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के जो टायर होते हैं, टायर के ऊपर जो चेसेस आती है, चेसेस और टायर के बीच में लीफ स्प्रिंग का यूज है। लीफ स्प्रिंग का काम क्या है? लीफ स्प्रिंग करती क्या है? लीफ स्प्रिंग करती है कि जब भी आपकी गाड़ी चलती है, जो जर्क लगता है, जो आपको जब जैसे कोई गड्ढा आ गया, तो लीफ स्प्रिंग क्या है, वो उसमें इसमें सस्पेंशन रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं सस्पेंशन। उसको सस्पेंस करके और गाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अगर यहीं पे बेल्टेल हो जाए तो लीफ स्प्रिंग जैसी टूटी, गाड़ी वहीं खड़ी रह जाएगी। तो लीफ स्प्रिंग का जो काम है वो सस्पेंशन का काम है यहाँ पर। तो नहीं, जमुना ऑटो देखो एक्चुअली जो इसका मेन कोर बिजनेस है वो है लीफ स्प्रिंग नहीं। अब लेकिन जमुना ने क्या करा कि जितनी भी लीफ स्प्रिंग के साथ में एसेसरीज लगती हैं उन सब का बिजनेस हम कर रहे हैं, जिसको हम ट्रेडिंग के रूप में देख रहे हैं। अभी जमुना ने पीतमपुर में एक प्लांट लगाया है जिसका नाम है जैको ऑटोमेशन। उस प्लांट में हम यू बोल्ट बना रहे हैं। यू बोल्ट जो सपोर्ट करता है, हाँ, क्लैंपिंग के लिए काम करता है। इसके अलावा हम स्लाइडिंग साइकिल बना रहे हैं, स्टेबलाइजर बार बना रहे हैं। स्टेबलाइजर बार जो कि एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दी जो भी LCV HCV है, इनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो अभी तक इंडिया के अंदर कुछ कंपनी लिमिटेड बनाती थी, लेकिन जमुना ने खुद बनाना चालू करा उसको। उसका कारण है कि हमारा ये कंसेप्ट है कि अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में कोई चीज़ बेचेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें हमारे को उतना पैसा जो हमें चाहिए नहीं मिल पा रहा, तो हम उसको असेंबल कर रहे हैं कि इस असेंबली में जो भी चीज़ चाहिए वो जमुना बनाएगी। चाहे वो फिर स्लाइडिंग साइकिल हो, चाहे वो यू बोल्ट हो, चाहे वो बुश हो। इवन हम बुश का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इवन आपको अभी बता दूं कि जो फार्मिंग में जो कल्टीवेटर वगैरह जो यूज हो रहे हैं, हम उसका भी प्रयोग कर रहे हैं, वो भी बनाना चालू कर दिया। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है, जो फोरकास्टिंग है, किसी को नहीं पता कि कोरोना कब आ जाए, ये किसी को पता नहीं। इसलिए हमेशा बिजनेस जो है ना, नोकिया क्यों फेल हुआ? इसलिए तो फेल हो गया, अपने आप को एडवांस इनोवेटिव नहीं कर पाया। तो हमें सोचना पड़ेगा। आज सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज दुनिया की काफ़ी उसमें अच्छी में गिनती क्यों आती? क्योंकि सुप्रीम ने प्लांट बहुत बनाए और हर जगह वो मतलब हमें इनोवेट करती रहती, नया लेके आती, इसलिए सुप्रीम आगे चल रही है। सुप्रीम के कंपटीटर ऐसा नहीं कि अपने भारत में नहीं, बहुत हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सुप्रीम फिर भी लीड कर रही है। जमुना ऑटो क्यों लीड कर रही है? जमुना के बहुत सारे कंपटीटर, कम से कम 25 कंपटीटर हैं, लेकिन वो लीड नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि जो कन्वेंशनल जो चला आ रहा है उसी पे वो अपनी बात को करके चल रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा अभी थोड़ा सा AI और ब्लॉकचेन देखो, आई एम नॉट दी टेक्निकल पर्सन और ना मुझे AI और ब्लॉकचेन की ज़्यादा जानकारी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मोटे शब्दों में कि AI है क्या। AI जो है ना, आपका एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य की तरह काम करने के लिए उसको डेवलप कर दिया गया कि भैया ऐसे करके जैसे आदमी सोचता है वैसे उसको सोचने लगे, सिंपल। उसके अंदर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डिवाइसें कर दी, जैसे चैट GPT। आप प्रॉम्प्ट डालो, आपने लिखा कि मेरा बायोडाटा ये है, तो वो डिटेल्ड कर देगा, आपको बना के दे देगा। AI मतलब AI आपको किस में हेल्प कर रही? ड्राफ्टिंग में हेल्प कर रही। आपकी जो भी जानकारियाँ आपको चाहिए वो दे रही है, तुरंत दे रही है। क्यों जी? किसने दी है?
एआई ने दी, नहीं, आदमी की सुपर पावर ने उसमें इनपुट दिया, उसके बेस पे एआई सब काम कर रही है। और लेकिन अभी जो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई, मोदी जी जहाँ गए थे, वहाँ पे नई करेंसी चालू हुई ब्रिक्स की, तो वहाँ पे एक ब्लॉकचेन का यूज बताया गया है, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन को सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं, जब अपन 1996 में लॉग बुक भरते थे, उस समय जो भी डाटा होता था कॉपी पे लिखते थे, और ऐसे कई लॉग बुक साल में भर जाती थी। लेकिन जब से ब्लॉकचेन आया, तब से हमने क्या किया, तब से हमने खंड बनाए, एक एक ब्लॉक बनाया, और उसमें इंफॉर्मेशन कैसे दी, एक्सेल आपका जो वर्ड है इसमें अपन ने बना के और एक इंफॉर्मेशन दी। इसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज में क्या होता है कि गलती होने के चांसेस होते हैं। बी रीजन एक सिंगल आदमी विंडो डिसीजन ले रहा, आपने नीचे से कोई अगर एक इंडेंट रीड करके और पीओ बना दिया और सीधा सेंट्रलाइज होकर टॉप लीडर के ऊपर जा रहा, मतलब प्लांट हेड के ऊपर, तो हो सकता है अगर गलत बनेगा तो चला ही जाएगा वो। लेकिन इसमें ब्लॉकचेन में एक गलती होने के चांसेस जीरो हैं, बिकॉज हर लेवल पे हर आदमी को एक अथॉरिटी दी हुई है। आपने एक ब्लॉक बनाया आरुणेश भदौरिया, हमने कुछ लिखा, मेरे बाद एक जो चेन, ब्लॉक चेन मतलब ये एरो लगाया, दूसरा ब्लॉक बन गया, आपने कुछ लिखा, तो आपको मेरे उस ब्लॉक में जो मैंने इनपुट दिया उसको चेक करने का अधिकार है। उसके बाद जब सेंटर में जाके सारे ब्लॉक मिल करके वहाँ पहुँच जाएंगे, उसको कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ वेरीफाई होते होते कहाँ छन के गई हुई रिपोर्ट, तो आपका साइबर वहाँ पे अटैक नहीं हो सकता, आपकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपकी क्लैरिटी रहेगी, और जो भी डाटा उसको नोबडी कैन इम्यूटेट, उसको कोई चेंज भी नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द एक्चुअली सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन। ये इससे मतलब ब्लॉकचेन हमारे जीवन में ये बहुत अच्छी बात हो गई, ये मेरे को मतलब खुद पसंद आया। एआई तो चलो फिर भी गलती कर पा रहा, लेकिन ब्लॉकचेन में गलती होने के चांसेस नहीं है। ब्लॉकचेन में गलती होने के चांसेस सिर्फ इसलिए नहीं है, अगर इसको सेंट्रलाइज कर देते तो हो सकता गलती हो सकती थी, लेकिन चूंकि ये डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज के सीधे मायने क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 चेयर पड़ी हुई हैं, इस आदमी ने जो भी लिखा इससे इसको कनेक्ट कर दिया, इसने जो लिखा इससे एक दूसरे को वेरीफाई करते हुए वहाँ पहुँच रहा है। अगर इस पहले की गलती आप तक बैठे हुए है तो यहाँ पकड़ी जाएगी, लास्ट में जाकर के वो पैक, तो उसको ज़्यादा पावर नहीं है। जो लास्ट में बैठा वो तो सिर्फ एक डमी होके बन गया, यहाँ से जाकर के वहाँ सिस्टम में सेट हो गई जाकर चीज़ें। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन, नथिंग एल्स। बस इसमें यही है कि आपकी जो भी चीज़ें आप चाहो तो बरसों बाद भी इसको देख सकते हो, मेरा क्या डाटा था, मिल जाएगा आपको। किताबें कॉपी जल भी सकती, पढ़ भी सकती, नहीं कुछ काम कर रहा। अब हमारा इसमें पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, किसी भी टॉपिक पे सवाल करें। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर इस पर कोई सवाल करना चाहे तो अपन बात करेंगे। क्वेश्चन जो आपने शुरुआत में कहा था कि हम आज जो डिसीजन लेते हैं ये सही है, अगर 10 साल के बाद मालूम चलेगा। हाँ, डिसीजन उस टाइम सही लिया था, गलत लिया था, आज कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो आप? उसको मैं हाँ उसको बोलते 2 मिनट डिसीजन। जो मैंने आपसे बात करी थी वो था 10-10-10। 10-10-10 के मायने क्या होते हैं कि ये आपको प्रेडिक्ट करता है कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिलने जा रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मैं आज ही डिसीजन लेना चाहता हूँ, और उसको बोलते 2 मिनट डिसीजन। मतलब अगर आपने आप बैठो, आपको लगता है मुझे पानी पीना है, नहीं आपने 10-10-10 का बताया, हाँ, ये डिसीजन आप आज ले रहे हैं, हाँ, तो 10 साल के बाद मालूम चलेगा ना ये अच्छा है बुरा है। ये तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको पहले से पता चल रहा है। पूछो कैसे? 10 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपने आज लिया, 10 मिनट बाद आपने क्या कहा? बहुत अच्छा है, बोला ना आपने 10 मिनट बाद पिज्जा खाने के बाद क्या बोला? आनंद आ गया। लेकिन 10 महीने में आपको क्या पता चल गया? शरीर हमारा गड़बड़ होने लगा। फिर भी आप खाते रहे, क्योंकि वो 10 मिनट का आनंद जो है ना वो आपको रुकने नहीं दे रहा, और वो आपको 10 साल तक खींच के लेके जा रहा है वहाँ तक। आप देखो ना, आपको पता सिगरेट पीना नुकसानदायक है, लिखा भी रहता है, फिर भी आदमी पी रहा। क्यों पी रहा? क्योंकि उसकी लत लग गई उसको। ओवरलुक कर रहा है। हाँ, तो ओवर कर रहा ना, तो डिसीजन क्या है? तो डिसीजन तो हमारे विचारों में तो डिपेंड कर रहा ना। डिसीजन कोई अलग से थोड़ी आ रहा, डिसीजन कोई दूसरा आदमी थोड़ी ले रहा। आपके ऊपर डिसीजन को थोपा जाना एक अलग बात है। इफ़ यू आर टेकिंग योर ओन डिसीजन, तो वो आपका खुद का डिसीजन है। आज वहीं पे दूसरा एग्जांपल मैंने क्यों SIP का दिया, उस बंदे ने सिर्फ 1000 की SIP करके 10 मिनट बाद क्या सोचा, मेरी जेब से 1000 रुपये चला गया, यही सोचा। लेकिन 10 महीने बाद उसको कैसी फील आई कि 10,000 रुपये जमा हो गए, और 10 साल बाद क्या कहता, मेरी लाखों रुपए की वेल्थ बन गई।
ये है 10-10-10, इस फार्मूले पे लोग काम करते हैं और जमुना भी काम करती है। दुनिया जैसे हम भी जब जमुना में कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो हम एक दिन के लिए डिसीजन नहीं लेते हैं। आप देखो, आप चाहे SIP हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे किसी में भी जाइए, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं हर चीज़ के। उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और बेनिफिट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन यू टेकन इन द प्रीवियस। फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हो 10 साल के बाद क्या होगा ये? क्यों नहीं, आपको फोरकास्टिंग का करने का उसको आपको पता कल अपन रहेंगे नहीं रहेंगे, आप ये बताइए चलिए। नहीं बताना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इफ यू आर अलाइव और आपको वहाँ तक पहुँचते हो जहाँ तक कि हम फोरकास्ट कर रहे हैं, तो आपके डिसीजन आज जो आपने लिए उससे क्लियर हो रहा है कि आपको क्या होने वाला है। जैसे आज जमुना, मान लो उदाहरण दे रहा हूँ, जमुना ने लीफ फिशिंग बनाना चालू किया, तो जमुना को पता था कि हम टाटा का इतना SOB ले लेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन जमुना ने क्या करना चालू रखा, अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कंटिन्यू से चालू रखी। जमुना ने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं करा, उसने कंटिन्यूएशन में उसको चालू रखा। उन्होंने कहा नहीं यार, थोड़ा बहुत पैसा कम करके हमें और बिजनेस बढ़ाना, बोले बढ़ाएंगे, बट अपना इन्वेस्टमेंट कम नहीं करेंगे, अपनी सप्लाई कम नहीं करेंगे। तो आज जमुना लीड कर रही है। अगर वहीं हम ये सोच के काम करने लगते यार नहीं यार, घाटे का सौदा है, ब्रेक इवन भी नहीं निकल पा रहा, तो हम बंद कर देते हैं, तो आपकी 10 साल की मेहनत कम ही नहीं आती, आप 10 महीने में बिजनेस को रोक सकते थे। और आपके मन में अगर कोई विचार, अगर आप इसका कोई आंसर देना चाहें तो आप बताइए क्या रहेगा। नहीं, आंसर नहीं, एक्चुअली आप जो बोल रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एथिक्स और मोरल शामिल हो रहा है डिसीजन में। हम बात कर रहे हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मैनेजमेंट की। डेटा ड्रिवन डिसीजन मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं, वो आ गया इसमें। अपना जो सप्लाई चेन, जो हमारी जो जमुना ऑटो काम कर रही है, ये तो उसमें बात होगी। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ एक्चुअली वी आर लिविंग इन अवर लाइफ। ये एक अपना जो डिसीजन था, जो 10-10-10, ये इस तरह के लोग काम करते हैं और हम भी कर रहे हैं, उनमें हम भी हैं। डेटा ड्रिवन एक अलग कहानी हो गई कि वो तो अपनी, ठीक है, कंपनी ने एक स्टार्टअप लिया और उसके बाद चलती चली जा रही है, वो डेटा बेस काम हो गए। लेकिन हम जो आज अपनी लाइफ, आप भी अपनी लाइफ में यहाँ पे आप बैठे टाइम निकाल के आ रहे हैं, एक वैल्यूएबल टाइम निकाल के अपने यहाँ बैठ के सुन ही रहे ना। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ सीख के जाएंगे या हम कुछ दे के जाएंगे। आज के टाइम में जो कंपनी है या कोई भी है, सारा डेटा बेस पर काम कर रही है, डेटा बेस डिसीजन हो रहा है सारा। डेटा बेस डिसीजन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आदमी की ज़रूरत है। उसके बाद भी आज हम क्यों हैं जमुना में? अगर सारा कुछ डेटा ही से हो गया तो मैं वहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? आप समझो, इसका मतलब क्या है कि डेटा जरूरी है, डेटा बेस है, ब्लॉकचेन जरूरी, AI जरूरी है, लेकिन ह्यूमन भी जरूरी है। मैनेजमेंट का एक आदमी भी जरूरी है, जो मॉनिटर करेगा चीज़ों को, जो समझेगा कि सब जो चल रहा है वो क्या है। मालिक तो आएगा नहीं फैक्ट्री में आके। आज मैनेजमेंट क्यों रखा जाता है? मैनेजमेंट इसीलिए रखा जाता है कंपनी में, क्योंकि हर एक लेवल पे एक मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन में मैं देख रहा हूँ, तो सप्लाई चेन में कोई भी ऊंच नीच होगी, उसका डिसीजन मुझे लेना है, और मुझे कोई प्रॉब्लम फेस होगी तो टॉप मैनेजमेंट में जाएंगे, प्लांट हेड से बात करेंगे। बट जो हिरार्की है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके साथ में अगर ऑटोनोमस, जैसे मान लो, चलो अपन विप्रो की बात कर लें, विप्रो में क्या आदमी खत्म हो गए? नहीं हो गए, लेकिन हाँ कम हो गए, कम हो गए। क्यों? उन्होंने कहा कि मेरा जो पहले जो मेन हैंडेड वर्क था उसको मैंने ऑटोनोमस कर दिया और 50% हमारा ये हो गया, तो आदमी कम कर दिए। तो वो आदमी जो वहाँ से कम हुए, तो क्या उनकी नौकरी बिल्कुल चली गई? बिल्कुल नहीं, वो कहीं और लग गए जाके। मतलब कुल मिला के जो लोग ये मिस फैला रहे हैं कि ऑटोनोमस आने से सब कुछ खत्म हो जाएगा और आदमी की जॉब चली जाएगी, वो मैं चैलेंज कर बार बार फिर कह रहा हूँ कि नहीं आएगी। एक सिंपल उदाहरण से मैंने आपको बताया था कि 1996 में जब लोग वो भरते थे, आज एंड्रॉयड फ़ोन है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। वो तो एक मिथ पहले भी आया था, हम लोग जानते थे कि पहले जो बैंक में काम होता था कैशियर होता था, लेन देन के लिए कैश वाले वहाँ जाते थे। फिर ATM आए, लोगों ने ATM को काफ़ी अपोज किया, बोले जॉब चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ATM अपनी जगह काम कर रहा है, आदमी अपनी जगह, कैशियर अपनी जगह काम कर रहा है। बस इतना जरूर हो गया कि पहले अपने को अकाउंट में जाने के लिए नंबर ढूंढना पड़ता, अब ढूंढना नहीं पड़ता। अब तो ये अल्फ़ाबेटिकल डाला, आपको दिख गया फलाने सिंह के ये नंबर है। तो यही सिमेट्री सब जगह चालू हो रही। आज क्या अपने जैसे इंडस्ट्रीज है, कितने अपने सुप्रीम में SAP वगैरह सब चल रहा, मेरे यहाँ SAP चल रहा, रैमको चल रहे हैं, ERP चल रहे हैं। ये सब क्या है? दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी एक्चुअली। इन सब, ये सब क्यों जरूरी हो गए? क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम हाथों से लिखना पसंद कर रहे थे, वो हमने सिर्फ सिस्टम में अपलोड करना चालू कर दिया, ताकि डाटा हमारा सेफ रहे, सिक्योर रहे, और हमें कभी भी अगर एट ए ग्लांस कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको एक बटन क्लिक करो, सब दिख जाएगा। इसलिए हमने ये डाटा ड्रिवन में काम कर रहे हैं, और करना भी पड़ेगा। अब चूँकि एजुकेशन की बात है, तो मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जब भी कोई भी चीज़ का हिरासमेंट होता है, जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं, हम लोग खुद हो जाते हैं।
हम लोग खुद होते हैं। ये थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दिस, एजुकेशन जो हमारी है ना 1757 और 1947 इस दौरान टोटल 190 वर्ष हुए हमारे। इस 190 वर्ष के दौरान हुआ क्या, देश के अंदर सबसे बड़ी पावरफुल जो व्यवस्था थी वो गुरुकुल की थी हमारी। और लॉर्ड मैकाले, जिनका ओरिजिनल नाम इब्राहिम लिंकन था, जब वो यहाँ पर आया तो सबसे पहले उसने ये सर्च करना चालू कर दिया कि भारत के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो जब उसने देखा कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है तो एजुकेशन और गुरुकुल लगे उनको, तो उसने ख़त्म कुछ नहीं किया। 1842 पहला उसने कॉन्वेंट ले आके वहाँ पे खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि बच्चे फ्री में पढ़ाओ, इंग्लिश सीखने लगो हमारे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वहाँ पे इंग्लिश सिखाने के लिए अपने बच्चों को भेजा और आपने क्या कर दिया कि जो गुरुकुल में जो अपन साल भर में जो अनाज होता था वो देना चालू कर दिया, वो बंद कर दिया। अपन ने ये सोचा कि अब तो अंग्रेजी फ्री में पढ़ लेंगे। धीरे धीरे करके 1947 आते आते हमारे गुरुकुल ख़त्म हो गए और फिर हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने गुरुकुल ख़त्म कर दिए। गुरुकुल किसी ने नहीं खत्म किए, गुरुकुल हमने खुद ही ख़त्म कर लिए। तो जब भी कोई हिरासमेंट होते हैं, कुछ भी होता है, उसके पीछे अगर आप वाई एनालिसिस में जाएंगे तो 5वीं बार वाई करते ही आपको पता चल जाएगा उसके रीजन क्या अपन खुद हैं। वाई एनालिसिस कितने लोग कंपनी में वाई एनालिसिस कर रहे हैं आज की डेट में? सारे लोग, मतलब 2-3 कंपनी वालों को तो वाई एनालिसिस पता ही है। बाकी वाई एनालिसिस एक सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें ये पता चलता है कि रूट मतलब कॉज क्या है किसी भी कारण होने का। उसके बाद जैसे आप हार्डली 2 to 3 पे लिखने जाओगे तो आपको एक वो रीजन मिल जाएगा, वैलिड रीजन, जिसके ऊपर आप अटैक करके उसको क्लोज कर सकते हो चैप्टर को। और इसी के साथ में एक इन डेप्थ वाई होता है, वो इसलिए एप्लीकेबल, वो क्या बहुत बड़ी चीज़ जब करने जाओ तो वहाँ पे कई पता चलेगी कि 50 बार वाई लिखने के बाद पता चलता हाल निकलने जा रहा है। तो ये जो वाई एनालिसिस है ये अपनी जीवन में भी आप लगा सकते हो। जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आप उस पर आप 5 बार वाई लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा नींद क्यों नहीं आ रही है। केवल 5 बार आप स्टार्ट करिए कि नींद नहीं आ रही, रीजन क्या है, आप पता करो कि कल मैंने रात में ज़्यादा खाना खा लिया, क्यों खा लिया, भूखे थे, ऐसे करके 5 बार लिखोगे क्लियर हो जाएगा। तो अपने जीवन में हर एक जो भी आप करने जा रहे हैं उसके पीछे एक रीजन, एक वैलिड रीजन लेकर के अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। आज जो एक सोशल में हम बात करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज के पास स्कूलों में कुछ भी हो, लोगों के अंदर जो स्ट्रेस बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? सोचना बहुत कर दिया चालू, वह तमाम सोच रहे हैं। उनके हाथ में सोचने से कुछ होता क्या मतलब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उसको सोच के करोगे क्या, लेकिन जो आपके हाथ में है उसके बारे में सोचिए। अब आप कहेंगे कि सोचने मतलब मेरे हाथ में क्या है, आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, आप नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हैं? कहने में बहुत अच्छा लगता है कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन नेगेटिव अपन भी सोचने लगते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और जिस भी काम को कर रहे हैं उसके ऊपर एक फोकस करना चाहिए। और फोकस के साथ में आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी कोई भी चीज़ आपके पास कितनी भी हावी हो जाए आपको हरा ना सके। एक उदाहरण के माध्यम से इसको भी बता देता हूँ मैं आपको कि आपने देखा होगा किसी भी पेड़ को लगा, जैसे बांस का पेड़ है वो 5 साल तक सिर्फ 2 इंच उगता है, लेकिन जब आप 1 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद देखते हो 70 फुट ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल गड्ढे में ज़मीन में अपनी कसरत की है, उसके बाद उगना चालू हो रहा। तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पेशेंस ज़्यादा रखने पड़ेगा। इसी के साथ में जब बाज को देखना, समुद्र में कितनी भी गहराई में मछली हो, अगर बाज ने एक बार टारगेट कर लिया ना तो वो उसको वहीं से अटैक करेगा और लेके ऊपर चला जाएगा। इस तरीके का फोकस, ये नहीं कि कान इधर भी कर लिए कि फलाना क्या बोल रहा है, इधर भी कर लिए ये क्या बोल रहा है। आपका फोकस एक टारगेट पर होना चाहिए। जब तक वो टारगेट आप अचीव नहीं कर रहे तब तक उस पर फोकस बना के रखो। एटीट्यूड में क्या रहता है, अब जंगल में शेर तो बहुत हैं, देखा जाए तो बहुत हैं, हाथी और बड़ा है, जिराफ उससे भी लंबा है, लेकिन शेर फिर भी कहता है आई एम द किंग, बिकॉज ही नोज कि उसका एटीट्यूड क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसको अगर अपनी लाइफ में अगर हम उतारने का प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और कोई सवाल पूछो जरा। देखो क्या होता है कि एक इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, दिस इज ऑल गोइंग ऑन, कीपिंग ऑन प्रोसेस, कंटिन्यूअल प्रोसेस चलती रहने वाली है। इसमें आप नहीं होंगे, कोई लोग लिखते थे कि हम नहीं होंगे तो ये देश कैसे चलेगा, वो भी चलेगा, सब देश चल रहा है, ठीक है, ये सब चलता रहेगा।
किताबें अपनी जगह काम करेंगी, आप अपनी जगह काम करोगे, एवरेज बदरिया अपनी जगह काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि चेहरे पे हमेशा खुशी रहनी चाहिए, चेहरे पे खुशी। तो एक आदमी बोला, बोले सर कहाँ क्या कर रहा है, बोले मैं खुशी ढूंढ रहा हूँ। खुशी कहाँ मिलेगी भैया, खुशी मिलती कहीं नहीं है, खुशी बहाने ढूंढती। क्या ढूंढती? एक लेडीज थी, उसके पर्स में 10,000 रुपये थे, वो रास्ते में जा रही, उसको 50 रुपये मिल गए। इतनी खुश हुई, पानी वाली बताते के पास गई, भैया बोले 50 रुपये की पूरे की पिला दो हमको। और अपनी सहेलियों से पता क्या बोलती है, आज 50 रुपये की पानी बता दी पी ली। खुशी। एक आदमी था, नकली नोट लिए घूम रहा था 500 का। अब लेडीज बताई तो आदमी भी आ जाएगा। तो उसने 500 की गाड़ी में वो नकली नोट 500 का रख के और पेट्रोल पंप पे चलाया। खुश हो गया, बोले आज मैंने 500 का नोट चला दी, जबकि उसी की था लेकिन नकली था। खुश हो गया, खुशी हो गई। एक हमारे जैसे भी लोग थे, अपन मालनपुर जा रहे थे, टोल टैक्स वाले से बोला भैया मैं विधायक का वो हूँ भतीजा, वो उसने निकाल दिया, वो बड़ा खुश हो गया, बोले आज 50 रुपये मेरे बच गए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, खुशी ढूंढने से नहीं मिलती, खुशी पाने चाहती है। तो मेरे को, मैं आज बताऊं कि मुझे वो सारी चीज़ें, आपके चेहरे पे अगर खुशी है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। अगर आप घर जाकर के खुशी तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं, वाइफ से बात कर पा रहे हैं, बच्चों के साथ मिल पा रहे हैं, इससे अच्छा जीवन कोई हो सकता है क्या? हम किस टेंशन में और क्यों भड़क रहे हैं? ये चीज़ मैं आपको इसलिए फिर भी बता रहा हूँ, मैं बताऊँ सब्जेक्ट थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज की जो टाइम है उसमें सोशल वर्किंग है, ये बड़ी ज़रूरी हो गई है। लोगों की मदद करना सीख लो। पहले जो मेल कर चलते थे ना, मेलबाजी जो हम करते थे, इंटरनेट थिंग की बात कर रहे हैं, केवल इसलिए करते थे कि हमारा मेल तुम्हारे पास पहुंच जाए, तुम्हारा मेल मेरे पास पहुंच जाए, और इस तरीके से आदान प्रदान। लेकिन आजकल क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग फिर से यहीं कनेक्ट हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या हो गया कि लाइव चल रहा है, हर चीज़ लाइव चल रही। कैसे? उन्होंने कहा पिज्ज़ा का मैंने ऑर्डर डोमिनो में दिया, आप देख सकते हो कि पैकिंग चल रही है या प्रिपेरेशन चल रही है या रास्ते में चल रहा। तो दिस इज ऑल एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी चलती रही जी। कौन कर रहा है? क्या इंटरनेट कर रहा है? ये हम लोगों ने खुद करा है, हम लोगों ने भर के दिया इसको, तब जाके वो काम कर रहा है। आज सबसे बड़ा लोग कहते हैं ना सुपर पावर, सुपर पावर कौन है? अपना ब्रेन। इससे बड़ा कोई 35,000 शब्द 1 मिनट के अंदर सोच लेते हैं हम लोग। अगर बात करें कि 35,000 बार दिन भर में, सॉरी 1 मिनट नहीं, दिन भर में 35,000 बार हम सोचते हैं हर चीज़ को, अगर आप आंकलन करोगे। और 3,72,000 शब्दों का प्रयोग करते हो पर डे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे पता कि ये चीज़ें होती हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा से संभव हो पाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि बीपी है किसी कंपनी में, लेकिन टेंशन में जी रहा है। क्यों जी रहा है वो टेंशन में? आज कॉलेज और इंडस्ट्रीज के बीच में दूरियां हो रही हैं, ये भी हो रही है। इसका कारण क्या है? कॉलेज वाला सोच रहा है कि मैंने अपने बच्चों को बहुत हायर एजुकेशन दी, वो हाईली क्वालिफाइड ठीक है, सोच रहा है कि मैंने बहुत हाई क्वालिफिकेशन दे दी। और इंडस्ट्री वाला कह रहा है इसको। मैं सही बताऊँ, अपनी मन की बात बता दूँ, जब मैं इंटरव्यू लेने जब बैठता हूँ ना, मैं उससे क्वालिफिकेशन के नंबर नहीं पूछता। मैं कभी नहीं पूछता। मेरे पास कोई विक्रांत आए, प्रेस्टीज आए, MIT से आए, मैं सबसे एक ही चीज़ कर, बेटा खुश हो कि नहीं अपनी लाइफ में, पहले ही बताओ। क्योंकि देखो क्या है, वो बच्चा मेरा भी हो सकता है, और मेरा बच्चा भी बैंक में है, कॉर्पोरेट मैनेजर है। तो वो मेरे को बताता है डैडी प्रॉब्लम ये आती हैं। तो मैंने उससे कहा कि प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम से अगर आप लड़ोगे, लड़ने का मतलब ये नहीं कि तलवार उठा के उसको काटना है, उनको फेस करो और पेशेंस तरीके से उनको देखो कि हम कैसे फेस करके आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाओगे आगे। हमने भी बहुत प्रॉब्लम फेस करी। आज अब इस स्टेज पे अपन ने क्या था, पेपर पढ़ा दैनिक भास्कर, उसमें लिखा था क्वालिटी की जगह खाली, हमने भर दिया, 1991 मेरा हो गया सिलेक्शन। तो क्या हमारा उस सिलेक्शन से काम चल गया? अकेडमिक आपके लिए दरवाजे खोल सकती है, तरफ आपका करेक्टर उसमें प्रोग्रेस में काम आएगा। आप अगर सोचो कि मैंने MBA 99.99% से कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे, बंद भी हो सकते हैं अगर करेक्टर सही नहीं तो, आपका परफॉर्मेंस सही नहीं तो। academic is only to open the gate for interview, nothing else। ठीक है, इसके बाद आपका जो करेक्टर, आपका जो परफॉर्मेंस है, फॉलोअर्स नहीं, फॉलोअर्स बहुत हैं, कोई कहता मेरे 10 लाख है, कोई कहता मेरे 3 लाख है। आप परफॉर्मर बनो, फॉलोअर्स नहीं ना लाइकर्स।
देखो, सबको सुनो, सबको मेरी बातें भी अगर आपको अच्छी लगे तो उसको नोट कर लेना, और ख़राब लगे तो बंद करके साथ से छोड़ देना। बट लाइफ में बच्चे से एक ही चीज़ है, इंटरव्यू में मैं भी बता रहा हूँ, आप जब लोग हो, कि जब भी इंटरव्यू लो उस समय उसके मार्क्स से पहले उसका बैकग्राउंड जानने का प्रयास करिए कि वो बच्चा किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उसके साथ में माँ बाप का क्या व्यवहार है, या वो कैसे रह रहा है। क्योंकि आज की डेट में तकरीबन 80% बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्या हो रहा है, चूँकि अभी सब यंग हैं, कोई किसी के चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में, और उसी चक्कर में वो टेंशन में अपना घूम रहा है। लेकिन चक्कर भी कोई ख़राब नहीं, कुछ भी ख़राब नहीं, केवल माँ बाप अगर उसके ऊपर सही मॉनिटर कर लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, लव मैरिज करेगा, करवा देंगे, और क्या करेगा। बट अपने उन बच्चों को, जो चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हो चाहे आपके घर में हो, अगर वो आपसे मिलते हैं, किसी भी एंगल से मिलते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो आपका नाम सब जगह ले जाए। इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि मैं जस्ट जनरल मैनेजर हूँ, चलो बाहर बैठो मैं देखता हूँ। मैं सबको, भाई सब मेरे पास जो मिलने आता सबसे पहले बोलता हूँ पानी पियो, ठंडे रहो, अपने आप को कूल रखो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान ये सब चीज़ें हैं। अब हम एक शिक्षा के लिए भी आपको बता दें कि जो कॉलेज में शिक्षा है इसको बोलते हैं किताबी शिक्षा। लेकिन मैंने, ये मेरा खुद का अपना एक फॉर्मेट है जिसको मैं सब जगह बोलता हूँ, तो आज यहाँ भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि किताबी शिक्षा के साथ में 2 शिक्षाएँ और भी हैं। वो शिक्षा है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और आपका अपना जो कल्चरल एजुकेशन। तो इसको क्या है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं, मैंने क्या है लॉजिस्टिक में एक वो करा था, इन्वेंशन किया था जिसका नाम था SOT DOT, डिलीवरी ऑन टाइम, अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, और दूसरा था सेफ्टी एंड प्रिविलेज। ये 3 चीज़ों पे मैंने लॉजिस्टिक को जनरेट किया था। इसका मतलब मैंने रखा था 60-20-20। 60 नंबर मैंने डिलीवरी अगर टाइम से हो गई तो उसको दे दिया ट्रांसपोर्टर को। अगर मेरा ट्रांसपोर्टर के साथ में लाइजनिंग अच्छा है, अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स अच्छे हैं, तो मैंने उसको 20 में से 20 दे दिए। और सेफ्टी एंड प्रिविलेज, अगर उसने हमारा माल सुरक्षित तरीके से कहाँ पे पहुँचा दिया, सप्लायर तक, तो मैंने 20 वहाँ पे दे दिए। तो ऐसे 100 नंबर का मार्क्स हो गया। ये हो गई लॉजिस्टिक की बात। इसको जस्ट मैं जोड़ने जा रहा हूँ आपकी एजुकेशन से। एजुकेशन में क्या होता है, स्टडी थ्रू बुक्स। DOT की जगह मैंने SOT कर दिया, स्टडी थ्रू बुक्स कर दिया। किताबों से जो शिक्षा ली जाती है उसके मैंने दिए 60 मार्क्स। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वहाँ थी, यहाँ पे मैंने जोड़ दी, अदर क्वालिटेटिव को एक्स्ट्रा कर दिया। इससे मैंने कहा कि जो आप खेल कूद करते हो उसको 20 नंबर दे दिए। वहाँ पे था हमारा सेफ्टी एंड प्रिविलेज, यहाँ पे मैंने कल्चरल एजुकेशन जोड़ को उसको 20 नंबर दे दिए। तो मैंने जो सुप्रीम इंडस्ट्री से, सुप्रीम में मैंने डेवलप किया था एक्चुअली इसको इन्वेंशन, वहाँ से आज तक मैंने इसको एजुकेशन से जोड़ के रख दिया। और सब ने बच्चों से कहा कि मुझे 60 में से 60 नंबर वाला बच्चा नहीं चाहिए, मुझे 100 में से 50 वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 60 में से 30 ले आएगा 50% हो गए, 20 में से 10 ले आएगा, खेल कूद में 40 नंबर हो गए, और कल्चरल में भी लेके आता है, तो 50 नंबर वाला बच्चा उस 60 वाले से अच्छा है जो 60 में से 60 लेके आ रहा, बाकी दोनों में 0 है। तो अपने बच्चों को किस तरह की एजुकेशन देनी है आपको, SOT, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज और कल्चरल एजुकेशन, इन तीनों फॉर्मेट में 60-20-20। अगर इस शिक्षा को एप्लीकेबल करते, दावे के साथ कह सकता हूँ कि बच्चा बुढ़ापे में आपको ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ेगा। नहीं तो केरल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है ना, 100% मान लो, सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम वहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर लिटरेचर ओनली। उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने एजुकेशन नहीं ली है। एजुकेशन के मायने अगर हम बात करें तो जब आप जन्म लेते हैं, जब मृत्यु होती है, इस दौरान जितने भी एक्सपीरियंस, दिस इज ऑल एजुकेशन। अपने माँ बाप से कुछ सीखा आपने, किताब पढ़ा, कॉलेज गए, और इस दौरान जो जो एक्सपीरियंसेस किए आपने, ये सब एजुकेशन के पार्ट हैं। तो एजुकेशन और साक्षरता में बहुत बड़ा अंतर होता है। साक्षरता तो हो सकता है केरल में 100% हो या जो भी हो, ग्वालियर में कम हो, लेकिन ग्वालियर फिर भी वहाँ से अच्छा, क्योंकि यहाँ ओल्ड एज होम कम है। ये सारी चीज़ें मेरे को इसलिए बताने पड़ती है कि मैं सब जगह जब जाता हूँ ना, तो मैं कई बार ये सुनता हूँ माँ बाप, पेरेंट्स से, कि मेरे बच्चे ने इससे परेशान हूँ, उससे परेशान हूँ, ये परेशानी, सर इसकी नौकरी फैक्ट्री में लगवा दो। लगवा देता हूँ, पता चलता वो करता नहीं है, वो करते ही नहीं है, क्योंकि उसने
उस चीज़ों को फेस नहीं किया, उसने एसी में सोया है तो करेगा कैसे। इसलिए आपके पास कितनी भी एमिनिटीज़ रहें, कितनी भी फैसिलिटीज़ रहें, उन सब से कम 10-10 मिनट, फिर बार बार 10-10 मिनट की बात करेंगे, दूर रहने का प्रयास करें, जिससे आपके शरीर में जो रेजिस्टेंट पावर है वो बढ़े। उसको सॉफ्ट मत बनाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करना पड़ेगा हमें, तब जाकर के हम इस तरह की चीज़ों को लेके आ पाएंगे। फिर से मैं आप बात फिर से आता हूँ अपने टॉपिक के कि मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है और प्रोडक्शन, ये मैंने पहले ही बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल फंडा क्या रहता है कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फिनिश गुड तक जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, और प्रोडक्शन इसका एक पार्ट है, वो समय से जोड़ा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि फलाने घंटे में इतने मटेरियल बन सकता है, इतना प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इससे ज़्यादा अगर किताबों में जाओ उसके साथ लंबी चौड़ी कोई भाषा लगी हो। बाकी प्रोडक्शन का टाइमिंग किससे जुड़ा हुआ है, टाइमिंग से। प्रोडक्शन केवल टाइम बेस्ड होता है, अगर टाइम से कोई चीज़ बन गई दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, इसमें टाइम का रोल थोड़ी देर के लिए कह सकते हो कि जब अपने स्टार्टिंग किया वहाँ से टाइमिंग है, बाकी फिनिश गुड तक तो ये चलता है, ये दिस इज प्रोसेस। जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगना ही है, लेकिन प्रोडक्शन में टाइम नहीं लगना है। प्रोडक्शन में क्या होगा कि भाई साहब ने बोला कि भैया मशीन की देखो जरा कैपेसिटी क्या हुई, क्या मशीन की। उन्होंने कहा भैया ये मशीन 1 घंटे में 10 पीस निकालती, बोले आ रहे हो निकालो इसको, कितना निकलेगा। इसके बाद सीटी बनाया, उससे बोल दिया भैया मुझे इतना चाहिए प्रोडक्शन। नहीं तो आप कैसे मॉनिटर करोगे प्रोडक्शन। अभी आप बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, जो यहाँ से MBA और BTech और ME कर जा रहे हैं वो पास प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। उनसे पूछो प्रोडक्शन कैसे होगा तो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है प्रोडक्शन। अगर किसी भी कंपनी का सबसे अच्छा प्रोडक्शन करना हो तो उसके लिए क्या एक चीज चाहिए बताओ चलो। बताइए आपको लगता है। चलो मैं ये कहता हूँ जो कॉलेज है ना विक्रांत यूनिवर्सिटी, ये भी प्रोडक्टिव है। यमुना ऑटो में जो ब्रोकरेज जो ब्रोकन वाले जो है ना, ये अभी नहीं आ रहे हैं, अब दूसरे टाइप के आ रहे हैं। अब इसमें जो आ रहे हैं वो कहते आ रहे हैं कि मान लो कि मैंने सेंटर होल किया पट्टे के अंदर, जैसे ही बोल्ट लगाया उसके अंदर तो बोल्ट टूट गया। कौन सा पार्ट टूटा, चाइल्ड पार्ट। जमुना के लिए हर चीज़ आउटसोर्स है, जमुना का खुद का कुछ है इसमें कुछ नहीं, केवल जमुना की उसमें खुद की एक प्रोसेस है जिसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कह सकते हो और प्रोडक्शन कह सकते हो। इसके अलावा एवरीथिंग आर आउटसोर्स फ्रॉम जमुना। जमुना के लिए सारी चीज़ें हैं। तो अब जमुना क्या है कि अगर केमिस्ट्री किसी पट्टे की खराब आ गई तो जमुना के हाथ में क्या है, जमुना सिर्फ उसको टेस्ट कर सकता है और एज पर केमिस्ट्री उसके हिसाब से आगे बढ़ा सकता है। अगर पट्टा टूटा तो इसमें एक और फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिली हुई है कि अगर वो टाटा अप्रूव्ड सप्लायर है और फिर पट्टा टूटता है तो उसमें जमुना का फॉल्ट नहीं है। ये टाटा की एक क्वालिटी है। टाटा ने क्या कहा कि मेरे द्वारा अप्रूव्ड किए गया कोई भी सप्लायर अगर उसकी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है और आपका पट्टा टूटता है तो सप्लायर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। नहीं हाँ नहीं अभी इसमें दो चीज़ें हैं। फाइनल मतलब असेंबली, फाइनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया असेंबली। नहीं असेंबली से पहले जो हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो हमारा अगर हीट ट्रीटमेंट करा और उसी दौरान पटा अगर मतलब ज़्यादा हीट हो गया या ओवर हीट हो गया तो उसके ऊपर जो स्केलिंग आ गई वो हमारा फॉल्ट, वो हम कैप्चर करते हैं, वो हमें दिखता है वहाँ पे, क्योंकि हमारा डिजिटलाइज पूरा सिस्टम लगा हुआ। अगर पटे में कुंचिंग ज़्यादा भी हो गई, अगर हमने कुंचिंग में जैसे पटा फेंका उसमें डाला और उसके बाद वो निकल के जा रहा, अगर उसकी केमिस्ट्री में ज़्यादा भी, मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी पटा गर्म पटा अगर हवा में छोड़ दोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। और हमें प्रॉपर्टी क्या चाहिए, कुंचिंग के थ्रू निकालने वाली। डिजिटल है ना, मेरे पास के चेक कैसे कर रहे हैं? हमारे पास ये है कि जो हमारा जो कुंचिंग में जब पटा डाला, पहले तो हीट ट्रीटमेंट है, हार्डनिंग में हमने डाला, उसके बाद जो पैरामीटर्स पहले क्या थे हाथ से आंखों से देख के करना, अभी सारा डिजिटलाइजेशन कर दिया। पहले से जैसे AI सिस्टम जो उसने अपने फीडिंग कर दी कि ये पैरामीटर्स हैं इसके थ्रू हीट ट्रीटमेंट होके जाएगा। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई, ओवर हीट हो गया या पिट हो गया, किसी भी कारण से कुछ भी हो गया, वहाँ डिस्प्ले में आएगा। और यदि सपोज करिए किसी डिस्प्ले में वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, नहीं आ पाए तो एट दी एंड देखो क्या रहता है कि ये कोई इसमें क्वेश्चन इससे पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है।
नहीं मैं बता रहा जैसे एक एयरबस अभी क्रैश हुआ हूँ अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। हाँ अब वो उसमें ठीक है अपन अब कुछ भी कहें कि इसका फॉल्ट है उसका फॉल्ट है, जहाँ पे भी फॉल्ट है, लेकिन आज कितने पर्सन्स की जान चली गई, आज उनकी लाइफ जो स्टेक पर है। सेम चीज जो लीफ स्प्रिंग आप लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये भी कितना क्रिटिकल पार्ट ये है। क्रिटिकल पार्ट है, बहुत बड़ा क्रिटिकल पार्ट है। When the vehicle is running at the speed of 100 km/h और गलती से कोई एक इस तरह का इंसिडेंस होता है, पहले तो स्कॉर्पियो में भी तो ये लीफ नहीं अभी तो स्कॉर्पियो में थोड़ा सा अलग लीव कर दी है उन्होंने ये वाली। अभी तो क्या देखो दो चीज़ें समझ लो, पहले जो था हमारा लीव चेंजिंग वो कन्वेंशनल के रूप में था, और कन्वेंशनल का मतलब होता था कि 95% मिस्टेक हो सकती है। आप समझो मेरी बात को कि मैंने मिस्टेक का ये मतलब नहीं है कि 95% होगी तो टूट ही जानी है, बट चांसेस होते थे। क्यों? हर एक कमानी को हर एक लीफ को टेम्पर करते थे, हथौड़े से ठोकना, उसको गर्म करके फिर वो करना, पहले वो सिस्टम था कन्वेंशनल। लेकिन जब से ये पैराबोलिक आया, वैसे तो पैराबोलिक की उत्पत्ति 1988 में हुई थी, जो कि जमुना ने ऑलरेडी ओमनी के लिए काम किया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने बंद किया क्योंकि इंडिया में कहीं पर भी पैराबोलिक लागू नहीं था। लेकिन आज की डेट में यूरोपियन कंट्री में 100% लागू हो गया और भारत के अंदर 95% लागू हो गया पैराबोलिक, हर जगह पैराबोलिक चालू है इस तरह। तो पैराबोलिक लीफ फिशरिंग और कन्वेंशनल में केवल यही अंतर है कि कन्वेंशनल को हम टेम्पर करते थे, छेड़छाड़ करते थे, जिसकी वजह से उसमें चांसेस होते थे टूटने के और क्वालिटी डिफेक्ट भी उसमें मिल जाते थे। लेकिन पैराबोलिक इट्स ओनली डिपेंड ऑन द मशीनिंग, नथिंग एल्स। इसमें आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं, इसको A to Z इसकी जो प्रोसेस है वो केवल मशीनिंग है। इसमें आपने जरा भी अगर इसको पट्टे को जरा भी छेड़छाड़ कर दी, ये टूट नहीं है। इसलिए इसमें टेम्परिंग करने के कोई राइट्स नहीं किसी को भी। पूरी फ्लो ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, इसका क्विंचिंग टैंक से लेकर के क्वालिटी EST तक। असेंबली लाने का अलग फैक्टर हो गया, वो तो असेंबली करके बना देना, लेकिन जो मेजर है आई रोलिंग इसका मेजर है। इसके अलावा ट्विस्ट, इसको सेकंड आई रोल बनाना, वो इसका मेजर है। क्विंचिंग ऑयल में कितने टेम्परेचर पे इसको लेके जाना, कितने पे कूल करना, ये भी इसका मेजर है। इसके अलावा जो सबसे इसका लास्ट और इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परिंग। टेम्परिंग जो इसकी है, टेम्परिंग में क्या है कि लोग सवाल ये कर देते हैं कि यार जब तुमने इतना सॉफ्ट पट्टे को पहले हार्ड किया, हार्ड को फिर सॉफ्ट करा, फिर हार्ड करके आप टेम्परिंग क्यों करने जा रहे हो? तो टेम्परिंग क्या है कि हमें वो फॉर्मेशन चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मेशन, जिसके लिए असेंबली के लिए हमने पट्टा बुलाया गया था। तो वहाँ पे एक लास्ट टेम्परिंग जो हम करते हैं, टेम्परिंग के बाद फिर इसकी एक ही स्थिति बचती है, वो है असेंबली लाइन में पहुँच के काम करना। लेकिन इन दौरान मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स है ना वो क्या करता है, उसका रोल बहुत बड़ा है। ये लीफ स्प्रिंग के अंदर भी बड़ा है, इवन टाटा में जो बेसिक वो भी लोहे की अगर कोई चीज़ बनती है वहाँ पे शॉर्ट्स क्या है। जैसे हमने बताया कि अपने शरीर को नया दांत धोकर पाउडर वगैरह लगा दो शाइनिंग, तो शॉर्ट्स जो करता है ना वो उसमें स्ट्रेंथ, आपके लुक अच्छा होगा, आपका शाइनिंग होगी। तो इसी तरीके से शॉर्ट्स का यहाँ पर रोल है। शॉर्ट्स के बीच में जब अपन इसको लीफ को बेचते हैं तो उसमें जो भी रस्ट वगैरह जितनी ये सारी प्रिवेंट हो जाती है और एक स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा शाइनिंग पट्टी के अंदर आती है, स्ट्रेंथ भी मिलती है उसमें। शॉर्ट्स के बिना अगर आप लीफ बनाओगे टूट जाएगी। पूरा सिस्टम ही जमुना का ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप पैराबोलिक में 100% है और कन्वेंशनल में अभी 100% नहीं है। सुनने बीच में आया था कि जमुना ऑटो अपनी कॉइल स्प्रिंग का प्लांट भी लगा रहा है, क्यों? बना लिया यहीं पर मैन्युफैक्चर हो रहा है या? नहीं, अभी जमुना ने 3 एक्सपेंशन किए हैं। सबसे पहला है आदित्यपुर, जो कि ऑलरेडी चांडिल में मेरा एक प्लांट है, और आदित्यपुर में जो हमने प्लांट लगाया है वो 100% पैराबोलिक है और फुली ऑटो। जहाँ पे 50 आदमी काम करते थे वहाँ पे सिर्फ 10 आदमी काम करेंगे, फुली ऑटो कर दिया उसको। लेकिन नहीं, मैं आपको फिर डराना नहीं, मैं बता रहा हूँ। इंडस्ट्री 5.0 हम यही हाँ नहीं, हम बताने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि डरने की जरूरत नहीं। क्यों? जब फुली ऑटो होगा तो हमने क्या करा, वहाँ पे 5.2 जो इनोवेशन है 5.2 की बात करने लगे। 10 आदमी भी क्यों लग रहा है? क्योंकि हमको मशीन और ह्यूमन का कोलैबोरेशन करके काम कराना है। कर देते हैं ह्यूमन को, तो फिर बड़ी दिक्कत है, कहाँ जाएंगे? नहीं। मतलब हम लोग तो कभी-कभार ये बातचीत होती है टीचिंग कम्युनिटी में, हैं। सब ऑनलाइन क्लासेस आ गए, हैं। तो हम सब पहले वही सोचते थे हम बहुत अच्छे टीचर हैं, हैं। तो टीचर को कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रह जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा। देखिए आप, मैं इसमें चलो आपका एक्सपीरियंस बहुत है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब से हम लोगों ने जन्म लिया तब से कितने सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ देखा हम लोगों ने। क्या ख़त्म हो गया सब चीज़ें? सब चल रही हैं, जहाँ थे वहीं चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इनोवेटिव हुए, बहुत चीज़ें आ गई, बहुत हाईली टेक्नोलॉजी आ गई सब, लेकिन आदमी अपना जहाँ था वहीं काम कर रहा है।
इसलिए ये सब चीज़ें ठीक है, जमुना ने जहाँ 50 आदमी लगे थे वहाँ 10 लगाए, लेकिन वो 50 आदमी कहीं और लग गए होंगे, ये भी तो हो सकता है। वो केवल ऑटोमेशन मशीन में नहीं लगे, बाकी दूसरी जगह एक्टिविटी में भी लगेंगे, आदमी तो लगेगा। बस ये हो गया कि जो प्रोडक्टिविटी थी हमारी, उसमें क्या था कि एक आदमी इतनी इतनी लीप निकालेगा, तो उन्होंने कहा यार इसमें 50 आदमी का आउटपुट सही नहीं निकल रहा, इसलिए इसको ऑटो सिस्टम कर दो तो ज़्यादा निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रख लेना कि ऑटो सिस्टम में प्रोडक्टिविटी कभी ज़्यादा नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है। उन्होंने कहा ना कि इतने आरपीएम पे इतना पटा निकलना ही निकलना है, लेकिन जो ह्यूमन जब आदमी काम करता है तो उसमें कम ज़्यादा सब होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट सेटिस्फाई है विद ऑटोमेशन, क्योंकि उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो गलती कम होनी होगी, दूसरा ह्यूमन सेफ्टी। आप समझो ना कि आज की डेट में एक्सीडेंट हो जाए, इससे बड़ा क्राइम कुछ हो नहीं सकता फैक्ट्री के अंदर है। आज जमुना का जीरो एक्सीडेंट, जैसे गेट पे आप जाओगे ना, जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी, कोई भी आदमी एक्सीडेंट में नहीं हो सकता, इवन माइनर भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। अब गेट पे गेट की लग गई तो है ना, एक्सीडेंट का पार्ट है वो भी। आप अभी विक्रांत के अंदर गेट पे खोलो, कोई चीज़ अगर घुस जाए, की लगे, इसको भी जमुना उसको सीरियस लेती है। क्योंकि एक बार मैं टाटा में आपको बता दूं, मैं टाटा जमशेदपुर गया तो टाटा ने मुझे जूते दिए सेफ्टी शूज़ पहनने के लिए, तो मैंने पहन के जब गया तो वो वहाँ पे जो दरवाज़ा था ना, तो उसकी चौखट थोड़ी थी। वैसे तो टाटा का सारा प्लांट बहुत अच्छा ही है, तो गलती से पता नहीं क्यों मेरी शर्ट उसमें उजल के फट गई थी। टाटा इतना सीरियस हो गया इसको कि वो मेरे पे गलती निकालेंगे, तुमने उलझे कहते थे। आप समझो मेरी बात को। और मुझे लगा कि मेरी शर्ट फट गई, वहाँ से कोई कील निकली होगी, लेकिन टाटा ने हमसे तो जो बोला, लेकिन उस समय उन लोगों की सबकी एडमिन की क्लास ले ली जो कील कैसे निकली थी वहाँ पर। तो ये भी इंसिडेंट है। मतलब आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो टोयोटा, टाटा, महिंद्रा, आइसर मोटर और अशोक लीलैंड नहीं बना। अभी अशोक लीलैंड को उतना तो नहीं था, लेकिन मैं सारी कंपनी में गया हूँ, तो ये सबसे पहले इनकी प्रोडक्शन मेंटेलिटी नहीं है, इनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी वो है मेंटेलिटी सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। टाटा में कोई एक्सीडेंट सुनते हो आप? इतना बड़ा प्लांट है, बताइए। मुझे इससे एक चीज याद आ गई। हाँ। When I was pursuing the engineering, तो इंजीनियरिंग में सबसे पहले उन्होंने बताया एक इंजीनियर में डिप्लोमा होल्डर में और आईटीआई में डिफरेंस क्या है। हाँ। वो सिर्फ प्रोडक्शन की सोच रहा है, डिप्लोमा होल्डर आईटीआई प्रोडक्शन की सोच रहा है, काम कर रहा है। इंजीनियर का काम ही सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है फॉर द ह्यूमन बीइंग, उनके वेलबींग की। उसके बाद कहीं ना कहीं सारी चीज स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। भी जब वो अंदर एंटर कर रहा है कोई वर्कर या कोई भी उसका एम्प्लॉय, वो सेफली सिस्टम से इवनिंग में बाहर जाए, घर जाए, ये भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इंजीनियर की आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो काफी बार डिफरेंस होता है ना कि आज इंजीनियर्स को रिप्लेस कर दिया गया डिप्लोमा होल्डर्स के थ्रू, बट वो जो थॉट प्रोसेस जो पढ़ाया जाता है, मटेरियल्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारी चीज़ों का इनकॉर्पोरेशन में इंडस्ट्री 5.0 की बातचीत हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं और भी इंडस्ट्री के अंदर बेहतर, जैसे आपने एग्जांपल दिया टाटा, व्हाई नॉट ऑल कंपनीज should be like the टाटा। क्योंकि मुझे एक टाटा का एक इंसिडेंस और याद आ जाता है। उनके एक एम्प्लॉय को हार्ट की प्रॉब्लम आई, कैंपस के अंदर ही था, उसने अपना प्राइवेट जेट जो है उसको भेजा चार्टर को, देन उसके बाद उसको पिक करके दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया, देन उसके बाद पूरी फैसिलिटीज, पूरा पैसा उन्होंने पे किया। आखिर ये कल्चर कैसे स्प्रेड हो और कैसे आगे बढ़े? जैसे क्या है, ग्राउंड लेवल पर कोई चीज़ तो बड़ी आसानी से हो जाती है, बट एक मास लेवल पर यदि हम इसको करने जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद द सोसाइटीज आल्सो। हाउ टू इम्प्लीमेंट कि सभी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पर, कम से कम 90% ऑर्गेनाइजेशन उस थॉट प्रोसेस में आए। नहीं, अभी देखो मैं एफएमसीजी वगैरह जैसी कंपनी में नहीं गया, लेकिन मैं ऑटोमेशन की अगर बात करूं, स्टाइल पे जमुना की अगर हम बात करते हैं, तो ये समझ लो कि एवरी मॉर्निंग जो 9 से 10 की मीटिंग होती ना, इवन मैं समझता हूँ कि हर कंपनी में, जैसे अशोक लीलैंड हो गया, इन सब पे सबसे पहला जो डिस्कशन होता है प्रोडक्शन नहीं होता है। जो आपने बोला ये होता है कि सबसे पहले कल कितने एक्सीडेंट हुए, ठीक है, कल कितने एक्सीडेंट हुए, इस पे चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी क्या है, 0 एक्सीडेंट। अब उसको प्रिवेंट कैसे करें, सेफ मतलब अपन ये कह सकते हो कि एक्सीडेंट फ्री जोन कैसे बनाएं। अभी क्या हो गया कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट में भी आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, तो उसमें अपने अभी जो हम बात कर रहे हैं कि 95% क्या, मैं तो कहता हूँ 100% ये वर्क होना चाहिए अपने लिए,
तो इसमें क्या करा जा रहा है कि सबसे पहले तो जो आदमी अनसेफ, एक्चुअली क्या है, इसमें एक पॉलिसी है जो उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जहाँ पर जो टीपीएम हो रहे हैं, जहाँ पर भी जिस भी कंपनी में, वहाँ पे ये लेके चला जा रहा है कि अनसेफ कंडीशन किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे होनी नहीं चाहिए। अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन चल रही, नीचे बोल्ट हिल रहा है उसका, लेकिन अगर वहाँ से कोई गुजर रहा है और उसने देख लिया बोल्ट हिल रहा है और फिर भी वो चला जा रहा है, समझ लो, तो वो एक्सीडेंट के चांसेस तो बनते हैं। लेकिन कंपनी ने अभी क्या करा कि बोल्ट हिल रहा है या कुछ भी, क्योंकि दिखता तो है ही सबको कि प्रोडक्शन के दबाव में आप बोल्ट हिलने वाली मशीन नहीं चलाना, आप बोल्ट हिलने वाली बिल्कुल मशीन में चलाना, जब तक वो अंटर और नलेज ये ओके नहीं हो जाता मेंटेनेंस से, तब इस पर आपको प्रोडक्शन निकालने की जरूरत नहीं। ये चीज़ें जो आपने बताई पहले बहुत थी, उसका कारण था कि हमारे ऊपर प्रोडक्शन का दबाव हुआ करता था। हमें ये लगता था कि सबसे पहले प्रोडक्शन बनाओ, आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, प्रोडक्शन की बहुत वैल्यू थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज टोटल रिवर्सल है। आज आप जमुना में आएँ या टाटा में जाएँ या अशोक लेलैंड में जाएँ, सुप्रीम में इवन जाएँ, प्रोडक्शन का देखो, प्रोडक्शन है क्यों, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से मिलेगी, ये भी तो है ना। तो प्रोडक्शन Jumna Auto Industries is India's largest and among the world's top 3 leaf spring and parabolic spring manufacturer. We are the only Indian company to provide a complete range of automotive suspension solutions for commercial vehicles, having attained leadership in conventional and parabolic suspension products in domestic market. We are expanding in new technology suspension system, lift axle and X suspension, and new market segments, including the aftermarket and exports. At Jumna Auto Industries, past few years have seen us deliver growth that has outperformed industry, strengthen our leadership position through increase in market share, achieve leaner metrics to strengthen the balance sheet and maintain our competitiveness and leadership position. We are moving towards achieving our vision of becoming a leader in automobile suspension solutions. Jay today is one of the world's leading players in automobile suspension solutions. Jay has 7 state-of-art strategically located plants manufacturing high-technology suspension systems. Jay, supplying to global and domestic commercial vehicle original equipment manufacturers with a successful track record of consistently delivering best-in-class quality. Jay has potential to become a hub for global OEMs and in the process of building meaningful capacities to increase our presence in exports and the aftermarket segment. Jay is pioneer in adoption of new technologies on the back of our extensive in-house research and development programs, technical assistance agreement with Whitewell Corporation USA for design and manufacturing of air suspensions and lift axle products. We have wide variety of products, conventional multi-leaf springs, parabolic leaf springs, air suspension, lift axle, equipments and machinery. The group is equipped with latest state-of-art machines ये अभी पूरा आपने करा है। robotic double-eye rolling. Delivers highly accurate eye diameter and parallelism. Camber classification under load. PLC controls camber classification up to 20D. Can classify spring camber under load in 5 categories. SPPC line. Dedicated single piece screw line for shearing, punching and V-cutting operations of conventional spring with leaf thickness up to 16 mm. Billet shearing line. Dedicated automatic line for billet shearing and stacking of bogie and parabolic spring with leaf thickness up to 45 mm. CNC vertical machining center with auto pallet changer and 24 tools auto tool changer used for center hole drilling, rivet hole drilling, and thickness machining and center width machining operations to achieve good consistency of dimensional quality subsequently required for assembly operations.
stress shock beating. State-of-the-art fully automatic stress shock beam line with 4 turbines to get enhanced compressive residual stress for higher fatigue life and achieve better coverage on the leaf edge and compression side, which is prerequisite for CED primer coating process. Assembly line. Semi-automatic conveyorized assembly line with online scratching and camber classification capability. Conveyor is specially designed with handlers to handle CED coated leaves to avoid paint scratches and damages. Fully automatic parabolic cooling line. LPG 5 end heating walking beam furnace is used for heating the leaves to have great control on decarbonization level in parabolic leaves. Line is equipped with online high pressure heat skimmer operating at 300 bar pressure. Heat treatment. Walking beam hardening furnace with scanner control with capability to control temperature within ±7 degrees. Cambering operation is carried out with 8 stations hydraulic drums having center flat hydraulic cylinder especially for parabolic spring. Top coat line. Fully automatic conveyorized robotic top coat painting line for consistent paint coverage and TFT to get enhanced salt spray life and ultraviolet resistance. Top coated springs are baked in LPG fired oven. CED line. Fully automatic conveyorized SCADA controlled cathodic electrodeposition primer coating line for enhanced salt spray resistance life. Heat treatment is carried out in 9 stages. Dedicated in-house paint and chemical laboratories are set up for testing and control of the processes with personnel. Eye forming and wrapper forming line. Fully automatic robotic eye and wrapper forming line for consistent quality with capability of single and double leaf processing. Eye forming can perform up to 25 mm thickness and 140 mm width and diameter from 30 mm to 130 mm. Fully automatic parabolic machines. CNC controlled parabolic machines designed and manufactured in Europe and Japan can roll various parabolic profiles, have glue bag facility. Performance endurance testing. Can test springs as in vehicle condition using servo ये मेजर है इसका capable of handling Load springs test. up to 200 kN load. Can run on 3 different scales. R&D. Independent design and testing department for proof. Value engineered springs from existing models. Improved stress shock beam capability. Stringent heat treatment process and improved steel grade development. High stress spray to meet tough life requirement. Alliances. Jamna Auto has technical tie-ups with Rhinewell Corporation USA for air suspension and lift axle. Corporate social responsibility. Environment. To conserve environment through air, water and noise pollution management. Education. Focus on primary and higher education of economically deprived school and college students. Sports. To support young sportspersons in pursuit of excellence. Jamna Auto Industries Limited. Corporate office, 2 Park Lane, Kishankar, Vasant Kunj, New Delhi, 110070 India.
ये जर्नी जो 1954 से लेकर के अभी तक का अपना देखा, तो जब मैं इवन कहूँगा जब मैंने ज्वाइन करी 2008 में, तब मैनुअल वर्किंग थी, तब भी बहुत सारी चीज़ें मैनुअली थी। अभी लेकिन उन्होंने सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए भी, क्योंकि सेफ्टी के ऊपर सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑटोमेशन में लेके आए। और अभी देख रहे हैं कि आप लगभग पैराबोलिक तो 100% ऑटोमेशन में कर दिया उन्होंने। हाँ, तब तो आपने देखा होगा, तब नहीं, अभी कंपनी कभी विजिट करेंगे तो हम जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ऑलरेडी एक्चुअली मैंने स्लाइड से पहले आपको बता दिया था कि सिंपल भाषा में अपन ये कहेंगे कि जब भी हमने इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, तो हमने इंडस्ट्री की शुरुआत करने के लिए 1.2 मतलब 1.2 से लेकर 5.2 के मीनिंग क्या, इम्प्रूवमेंट। जब हमने कोई शुरुआत की इंडस्ट्रीज की, तो हमको ये लगा उस समय कि इंडस्ट्रीज की शुरुआत कहाँ करनी चाहिए। हमारे पास कोई फैसिलिटी तो थी नहीं, तो हमने रिवर जहाँ पानी का सुविधाएँ थी उसके आसपास इंडस्ट्री लगाने का प्रयास किया, और उसके थ्रू हमने स्टीम के माध्यम से इंडस्ट्री चलाई। लेकिन उस समय हमें दो चीज़ों की चैलेंजेस फेस करने पड़ी, एक चाइल्ड लेबर और एक वर्किंग कंडीशन। उस समय कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। कोई पहली इंडस्ट्री जब अपने बनाई, तो जिस चीज़ की नुकसान हमें पहली इंडस्ट्री 1.2 में मिला, वो हमने इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव करके 2.0 में लेके आ गए उसको फिर। और फिर वो जो हम रिवर के किनारे या पानी के किनारे जिस इंडस्ट्री का लगाने का प्रयास कर रहे थे, वो हमने धीरे धीरे करके कहाँ लेके आए, एक समतल एरिया देखा, वहाँ पे लगाने का प्रयास किया, 2.2 आया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। तो जो चाइल्ड लेबर का इशू वहाँ था, वो यहाँ बंद हो गया, क्योंकि यहाँ हमने एक्सपीरियंस लोगों को लगाया और एक्सपीरियंस काम करने चले गए। तो इसके हिसाब से इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ 1.2 में क्या क्या रहने वाला और 2.2 में। The Industrial Revolution marked significant transformation in simple manufacturing process and society security driven by the technology advancement. ये इंडस्ट्रीज का लुक था उस समय। जब अपन बात करें 1.2 की, तो इस तरह की इंडस्ट्री हुआ करती थी अपने को, और मैन हैंडेड सारा काम आदमी के द्वारा ही रहता था इस तरीके से। और यहाँ पे चैलेंजेस क्या थे, प्रोडक्शन थ्रू स्टीम एंड वाटर पावर के थ्रू। की इन्वेंशन क्या हुआ, स्टीम इंजन, पावर लूम्स, स्पिनिंग जेनी वगैरह वहाँ पे उस समय की इन्वेंशन रहा। और इसके इम्पैक्ट क्या रहे, शिफ्ट फ्रॉम, हमने जो हमारी जो कृषि प्रधान पद्धति थी उसको हम इसमें इंडस्ट्री लेके उद्योग में लेके आए। उसके बाद इमरजेंस ऑफ फैक्ट्री सिस्टम एंड इनकी अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का हमने उसमें उस समय वो हुआ। और इसके बाद जो चैलेंजेस थे वो पुअर वर्किंग कंडीशन, चाइल्ड लेबर, ये हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ी। 2.0 में ये इम्प्रूव्ड हुआ और इम्प्रूव्ड वर्जन में हम पहुँचे। यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री चालू हुई। ये असेंबली लाइन आज जो हमने अभी दिखाई जमुना ऑटो की या टाटा मोटर की, उस समय भी ऐसा नहीं था, नहीं थी, सब कुछ था, बट जैसे अब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। वहाँ पे मास प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया अपने इलेक्ट्रिसिटी और असेंबली लाइन के माध्यम से। की इन्वेंशन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, असेंबली लाइन, कंबशन इंजन, एडवांसमेंट इन स्टील प्रोडक्शन की ये इंडस्ट्री पूरी। इम्पैक्ट और जो चैलेंजेस थे वो राइज ऑफ इंडस्ट्री कैपिटलिज्म। जब वहाँ पे क्या कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन हमको इसका अभाव देखना पड़ा, फिर भी हम लोगों ने फैसिलिटी साधन जैसे जुटाए और इंडस्ट्री को डेवलप करते रहे। इसके बाद जब हम 3.0 में आए तो यहाँ ऑटोमेशन चालू हो गया। ये इस तरह से 3.0 लेके आए अपन। ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया विद दी कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। की इन्वेंशन वही रहा अपना कि कंप्यूटर प्रोग्राम, जो PLCs, रोबोटिक्स, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहीं से स्टार्ट हुआ। इम्पैक्ट क्या हुआ, इंक्रीज, इससे हुआ क्या, जब इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ी और हमारा जो सर्विस डिपार्टमेंट था उसने प्रोग्रेस करी। इस 3.0 से हुआ क्या, पहले आदमी अपने हाथों से सारी चीज़ करता था, यहाँ ऑटोमेशन आया तो बहुत सारी चीज़ें आदमी ने सिर्फ बटन दबाना था, बाकी सारे काम हो रहे थे। तो 3.0 ने ये करा। लेकिन 3.0 के बाद इसमें चैलेंजेस क्या थे, इसमें लोगों को लगा कि हमारी जॉब
न चले जाएं। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। साइबर सिक्योरिटी कंसर्न, ये दोनों चैलेंज थे वहाँ पे। सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ आया अपने को 4.2। ये तो समझ लेना, इसमें तो लोग डर ही गए जब ये आया। ये देख लो, यहाँ आदमी नहीं दिखेगा आपको कोई, क्योंकि इसको अपन लोगों को ये लगने लगा कि बिना आदमी के सारे काम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ चैलेंजेस क्या आए वो देखिए आप। ये चैलेंजेस आए सबसे बड़ा, क्योंकि वहाँ कोई आदमी नहीं बैठा था और हमारी जो भी साइबर सिक्योरिटी वगैरह सब ध्वस्त हो गई इस दौरान। और उसके बाद हमको ये मतलब अब कुछ मतलब सोच नहीं पा रहा था आदमी करे क्या। इसके बाद इसलिए जो 5.0 की जो हम बात सेंट्रिक की बात कर रहे हैं, ह्यूमन और मशीन की, वो ये है ताकि वो इस तरीके से काम कर पाएगा। ये जो मॉनिटर बैठने के लिए जो आदमी बैठा हुआ है ना, इसका और मशीन का कोलैबोरेशन, ये बैठ के ये कर क्या रहा है, कोई काम थोड़ी कर रहा है, केवल ये मॉनिटर कर रहा है। जो चीज़ें 4.2 में O2 पर चलने लगी थी उनको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था, इसलिए साइबर क्रैश हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रैश नहीं हो सकता। यहाँ पे एक आदमी बैठा दिया, बोले आप लोग मिलके काम करिए। ये 5.0 का है। अब 5.0 में फोकस क्या हो रहा है, ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, दोनों को मतलब मिल के काम करने की बात हुई है, जो कि 4.0 में ऐसा नहीं था। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी, जो भी कर रहे हो वो सस्टेन होना चाहिए। ये नहीं कि आज कर दिया छोड़ दिया आगे नहीं करेगा, जो कि आप लोग देख रहे होंगे अभी सर को इतना कि ESG में सस्टेनेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है कि अगर ESG में सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो ESG काम का नहीं अपने किसी का। इसके बाद की इन्वेंशन, कोलैबोरेटिव रोबोट्स, एडवांस AI, सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, इवन इसमें छूट रहा है क्लाउड मैनेजमेंट या क्लाउड स्टोरेज, वो भी इसी का एक पार्ट है। इम्पैक्ट, वर्कर्स को यहाँ पे स्ट्रेंथ मिली। फिर ये 5.0 में लोग कह रहे हैं कि नौकरी चली गई, ऐसा नहीं हुआ। 5.0 आने के बाद लोगों की वैल्यू बढ़ी, रिवर्सल हुआ, क्योंकि 4.0 में ये लग गया था ना कि वर्कर को हटाओ काम चलता रहेगा। लेकिन जब पता चला कि नहीं यार यहाँ से बहुत कुछ गड़बड़ सकता है, तो फिर आप देखिए कि इम्पैक्ट क्या बढ़ा। एनहांस क्रिएटिविटी, इनोवेशन, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, इवन रिजिलियंट भी, सप्लाई चेन एंड पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट, सारी चीज़ों पे फोकस किया गया। एक नॉट ओनली वर्कर, हर चीज़ को इम्प्रूव किया। गोल आप देखिए इसमें एथिकल, हर चीज़ जो भी है वो एक प्रिंसिपली इसमें काम करने का प्रयास किया गया और हर एक को बैलेंसिंग किया गया, इक्वलिटी के साथ में काम करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, ये जमुना का ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में दिखा दिया कि आज करंट में जो काम चल रहा है तो सब रोबोट के थ्रू, पैराबोलिक मशीन है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग RM टू एंड यूज सीधा है कि RM खरीदने से लेकर के फिनिश गुड बनाने तक जो भी प्रोसेस उसके दौरान आ रही है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। और इसी दौरान अगर कोई प्रोडक्शन होता है टाइम से जुड़ करके, वो प्रोडक्शन है हमारा। बट प्रोडक्शन हर कंपनी वेरी करती है। जमुना का प्रोडक्शन CT पे डिपेंड है, हो सकता है आपका प्रोडक्शन आवर्स पे डिपेंड हो, किसी का प्रोडक्शन मिनट्स पे डिपेंड हो। HCM एंड लॉजिस्टिक, लोग इसको एक ही समझते हैं, थोड़ा सा अंतर है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, स्टोरेज, इन्वेंट्री, दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक, 3PL लॉजिस्टिक में आ जाता है सारा। HCM अगेन वही चीज़ आ गई, P2P, प्रोक्योरमेंट टू पे, सप्लायर से माल लेने से लेकर के उसको पैसा देने तक, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेजर, जो भी हेड है जो भी उसकी रहती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम क्या है? फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट करती क्या है? दिस इज बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रीज। 60% रोल रहता है इसको। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए ना तो सप्लाई चेन के ऊपर हाथ रख दो अच्छी तरीके से, लॉजिस्टिक के ऊपर हाथ रख दो, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। क्यों? फाइनलाइजेशन, उसको रॉ मटेरियल का प्राइस देना है। इसके अलावा लॉजिस्टिक का फ्रेट है, फ्रेट पैटर्न निकालना। जैसे कोई कंपनी वॉल्यूमेट्रिक होती है, सुप्रीम का पाइप जाता है वो वॉल्यूमेट्रिक है, उसमें वजन नहीं तोला जाता, उसमें क्या देखा जाता है, ट्रक की कैपेसिटी जो है उसमें ऑक्यूपाइड हो गया, मटेरियल पूरा भर गया कि नहीं। लेकिन जमुना के केस में क्या है, जमुना के केस में 30 टन पास है तो पूरा डालो उसको, मतलब बोलते हैं कि जितनी उसकी कैपेसिटी, उससे अगर 1 किलो भी कम चला गया तो नुकसान हमारे को हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी उसकी लोड कैपेसिटी बनाना और उसको प्रॉफिट में लेके आना, ये लॉजिस्टिक का काम है। दूसरा, मिनिमम इन्वेंट्री,
आप अगर किसी कंपनी में इन्वेंट्री बढ़ा के और लाइन चलाई तो वो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सही नहीं मानी जाएगी। उसका कारण क्या है? आप केवल ये सोच रहे हैं लाइन ना बंद हो जाए। आप केवल किस पे काम कर रहे हैं कि मेरी कंप्लेंट मैनेजमेंट के टॉप आदमी पर नहीं पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि लाइन बंद हो गई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ चाइल्ड पार्ट। लेकिन दिस वॉज नॉट द राइट वे टू एक्चुअली प्रोवाइड गुड सर्विस टू द कंसर्न डिपार्टमेंट और रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट जिसके लिए भी है। तो हमें उस पर वर्किंग, मैंने फिर पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसके लिए सिंपल फार्मूला एक ही रहता है कि सबसे पहले मशीन की कैपेसिटी, डिमांड और उसके बाद रीऑर्डरिंग। जो भी हम ऑर्डर करते हैं उसका प्रोसेस टाइम सीटी, टीटी एंड एलटी, इस पे काम जरूरी करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आया एआई एंड ब्लॉकचेन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। डिजिटल ट्विन बताया मैंने आपको कि एक आदमी जो अभी मैं लाइव कर रहा हूँ, एक बगल में खड़ा कर दो, उसको एक कोई भी चीज़ इंजेक्ट करके वो क्या अपना रोल रिएक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, उसमें डिजिटल ट्विन में आ रहा है। वो आपको एक आवाज़, जैसे आपने कपड़े की दुकान पे जाओगे, एक मॉडल खड़ा होगा, उसको पहन के आप आवाज़ कर सकते हो कि ये चीज़ ये हो रही है, ऐसा लग सकता है आदमी। तो डिजिटल ट्विन का रोल रहता है। इसके अलावा अपनी जो जर्नी स्टार्ट हुई डेस्कटॉप टू एंड्रॉयड फ़ोन, जिसमें आज की डेट में पहले हम जो लॉग बुक भरते थे, आज एंड्रॉयड फ़ोन तक है, तो अपने सारे काम इसी में करते जा रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड एंड वेल क्वालिफाइड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें हाईली क्वालिफाइड से ज़्यादा फोकस काय पे करना है? वेल क्वालिफाइड। क्योंकि हाईली क्वालिफाइड तो पीएचडी बहुत हैं, पीएचडी बहुत हैं, लेकिन उन्होंने उस पीएचडी का सदुपयोग कैसे किया, उन्होंने उस पीएचडी से क्या सीखा, क्या लोगों के बीच में वैल्यू एडिशन कर पाए। हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति ने अगर वैल्यू एडिशन दे दिया तो वो वेल क्वालिफाइड हो जाएगा, बस ये मान लीजिए। पेशेंस, फोकस एंड एटीट्यूड, ऑलरेडी एक्चुअली टोल्ड अबाउट दिस कि पेशेंस हमें कैसा रखना है, बैम्बू ट्री की तरह रखना है। 5 साल तक कुछ सोचना नहीं है, 2 इंच पे बढ़ोतरी है और 4 हफ्ते में 90 फिट। फोकस हमें कैसे करना है? ईगल आपने बाज देखा होगा, एक बार में निगाह डालता है कि मुझे इस पर टारगेट करना है, उसके बाद समुद्र के अंदर की मछली को लेकर जाता जाएगा। ऐसा फोकस होना चाहिए हमारा। और एटीट्यूड, जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर है, हाथी से बड़ा कोई है, जिराफ से लंबाई कोई है, फिर भी शेर कहता है आई एम द किंग। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। सीटी, टीटी एंड एलटी, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड, फिर भी वंस अगेन आई एम टेलिंग यू। सीटी जमुना के लिए एप्लीकेबल है, साइकिल टाइम। टीटी कस्टमर की डिमांड के लिए अवेलेबल टाइम क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री 8 घंटे चलती है, 8 घंटे में आपका प्रोडक्शन 1000 पीस निकल रहा है, कस्टमर ने कहा कि मुझे 1000 पीस चाहिए, तो मतलब आपका सीटी और टीटी दोनों बराबर है, गुड सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है। लेकिन कस्टमर ने कहा मुझे 2000 पीस चाहिए, आप 1000 पीस 8 घंटे में लगा रहे, अवेलेबल टाइम भी 1000 है, तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उस केस में 2 चीज़ें होंगी, या तो ऑर्डर आपके हाथ से चला जाएगा या आप लाइन बैलेंसिंग पे काम करना चालू कर दोगे। लाइन बैलेंसिंग के मतलब क्या है कि आज हम कोई चीज़ शुरू करेंगे, हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, वो 2000 पीस बनाने के लिए, वो लाइन बैलेंसिंग कोड है। तो इस केस में, टीटी के केस में हमें बार बार हम इसी पे फोकस करते हैं कि कस्टमर के ऑर्डर लेने से पहले हमें अपनी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है कि मेरा प्रोडक्शन का टीटी क्या है। तब हम कस्टमर, टाटा कभी बार क्या कर देता, फ़ोन लगा के बोल देता मुझे ये चाहिए, लेकिन हमारे पास देने के लिए है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो टीटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल यू आर डीलिंग विद द कस्टमर। उस समय आपको ये देखना ही पड़ेगा कि कस्टमर से जो चीज़ आप ले रहे हो क्या आप मीट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं तो पता चली कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक फॉर्म आता है सबसे लास्ट में, उसमें रिमार्क आपके नंबर कम हो जाएंगे। एलटी, फिर बता रहा हूँ कि एलटी में बड़ा कन्फ्यूजन है, कोई कहता है प्रोसेस टाइम, ट्रांजिट टाइम, ये टाइम वो टाइम। एलटी सिंपल, जनरेट पीओ, एक्नोलेज पीओ, डिलीवरी, इस दौरान जो भी टाइम लगा दैट इज कॉल्ड एलटी। आज आप 22 तारीख में कोई काम कर रहे हैं, पीओ बना दिया, कस्टमर ने, सप्लायर ने भी आपसे रिसीव आज ही कर लिया और 30 तारीख को डिलीवरी दे दिए, जोड़ आज का दिन हटा के जोड़ लो, जो भी है दैट इज कॉल्ड एलटी। लीड टाइम में और कोई कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग पता नहीं मेरे पास आते हैं, बोले लीड टाइम जो होता है डेफिनेशन लिख के पूरी 10 लाइन में बताते हो, ऐसे कुछ नहीं, सिंपल है, जो प्रैक्टिकल है उस पर काम करें। ये स्टॉप,
Thank you so much, sir. Now I request Professor Narendra Kumar sir from ITM University Gwalior. Please come on podium and deliver the vote of thanks. First of all, thanks to the opportunity for the vote of thanks. And सेशन तो बहुत अच्छी तरह से सब लोगों ने सुना है और उसको एंजॉय भी किया है। और सोसाइटी में हम टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ जो नैतिक जिम्मेदारी हैं उनको भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक किसी भी इंडस्ट्री का जब उच्च स्तरीय अधिकारी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके हम सबके बीच में अगर सामाजिक दृष्टिकोण की बातें करता है तो ये निश्चित तौर पे हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास समय है, हर व्यक्ति के पास समय है। और ये सिद्ध कर रहे हैं कि एक कोई भी अगर असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट पे है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और उन जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर वो नैतिक मूल्यों की बातें अगर कर रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हमें जितने परिपूर्ण तरीके से सुनना है उनको उतने ही परिपूर्ण तरीके से आत्मसात भी करना है। ये जिम्मेदारी चीज़ें हैं। मैं सर किस वे में आपका धन्यवाद करूँगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस ये इतना कह सकता हूँ कि आप इस इस FDP कार्यक्रम के अंतर्गत इस सेशन में आप आए। आपने इंडस्ट्री में जो ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जो जनरलाइज चीज़ें हैं, जो हम लोग सब लोग एज ए ट्रेनिंग के थ्रू बच्चों को दिखाना चाहते हैं, आपने एक वीडियो के माध्यम से हम लोगों को दिखाया और उसमें चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया। और करंट की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको कैसे जमुना ऑटो ने इम्प्लीमेंट किया है वो भी आपने बेहतर तरीके से मुझे समझाया। मैं और पूरा ये FDP परिवार, साथ ही हमारे वाइस चांसलर सर आदरणीय PS तोमर सर की अगुवाई में जो FDP हो रही है, इन पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now it's time for high tea break. Then you can go for the high tea and come back here for the article discussion at 4:30 sharp.